55 overs. Not only would that solidify them at second spot, it would also be a good dress rehearsal for the semi-final, which in all likelihood would be against Australia at the Eden Gardens. Kagiso Rabada running away from us. Right arm over the wicket. Classic side-on action. That's driven past the bowler, but he got a hand to it on his follow-through. That took the pace of the shot, and it's fielded at mid-off, and there can be no run. The captain, Temba Bavuma, and Fevula Kalo, both of them look very similar. They both have a receding hairline and then a French beard. They sport a French beard. But then they're very different as far as sizes are concerned. Shortish delivery from Kagiso Rabada, and off the back foot it's punched to the gap on the offside. They take a single and move on to 147 for 6. We started the match in bright sunshine, but now dusk has settled over Ahmedabad. The lights are on. Not all of them are on, but nonetheless some lights are on. It's an indication of probably some loss. That's been driven through the offside towards short cover. Another single. So that's probably the sensible, conventional, orthodox way of keeping the scoreboard ticking. And that's what the Afghanistan batsmen are doing. And that's something they will have to do for maybe 10 more overs, after which they can look to launch an all-out assault. While South Africa have brought their frontline bowlers, the field placing has been a little too defensive. That one coming back into the right-hander and wrapping the batsman on the pad. Rabada very excited, and he lets out a roar, but Rashid was probably impacted outside the line of the leg stump. Rabada still pleading with his captain. He wants a review. He's convinced about the decision, and eventually the captain goes along with the bowler, and they have gone upstairs. Umpire Christopher Brown signalling upstairs, and now Kumara Dharmasena will have a good look at this decision now, and Rashid having his heart in his mouth, because as far as Afghanistan is concerned, it is this partnership which is probably their last hope. And if Rashid departs at just leg before by the third umpire, it is almost like the last straw on the camel's back for them. But then we are waiting at the moment, and to us from here it certainly looked like going down the leg side, but then we are looking at the big screen. Clearly there is no bat and ball. It's wrapped him on the pad only, and it pitched outside the off stump, which means that certainly it is well in line, but then it's missing the stumps, just as it looked to us from here. That's exactly what the on-field umpire thought. That's what exactly has been confirmed by the third umpire, but somehow Rabada got carried away. I don't think De Kock was convinced either, but somewhere Rabada was so excited, so animated, that the captain succumbed to the pressure. Rashid off the back foot, turning it off his hips with the tie to long leg. He gets a single and gets off strike. That's a smart move, because when you are in trouble against a particular bowler, the best way to get off trouble is to get off strike. And that's what Rashid has managed by running through for a single. Omarzai, who is in great touch at the moment, he will be on strike. Rabada generating some serious pace here, but Omarzai in good nick now, and he has already got 47 runs to his name, on his toes, standing tall, and with soft hands steering it down towards gully, and there can be no run at the end of that over. It's 149 for 6 after 34. Or in other words, we are 2/3 into the Afghan innings, and they are 149. So if they go on at this pace, they can, and they don't lose too many wickets, they can still think of posting a score in the vicinity of 225. And with the kind of assistance that Keshav Maharaj is getting,
the spinners of Afghanistan certainly will be a handful. Keshav Maharaj starting a fresh over from the pavilion end. Left arm around the wicket and straight away ties the batsman. This time it's swept but straight to short fine leg and there cannot be a run. Rashid facing his opposite number, in the sense that both are the two frontline spinners. Of course, they are spinners of different varieties. Keshav Maharaj left arm orthodox and right arm leg break googly is Rashid Khan. But this time he reads Keshav Maharaj's turn very well, uses the tide and with those steely wrists of his, sends it scurrying towards deep mid-wicket and ambles along for a single. That's the 150 of the Afghanistan innings. They are 6 down. It's come in the 35th over. And our scorer Sunil Langdi tells us that the first 50 took 78 balls, the second 50 71, and this has been the speediest one in just 58 balls. This time studiously forward, stretching completely, and there can be no run back along the track. And Azmatullah is a classic batsman. He knows his responsibilities and therefore he doesn't want to take any undue risks. Stretching forward to the pitch of the ball, taking the ball exactly at the half volley and driving it is Azmatullah Omarzai, but not for runs. But he has managed to negotiate the threat of Keshav Maharaj quite easily in this over. And at the end of the 35th over, Afghanistan 150 for 6. केशव महाराज अपने 8 ओवर पूरे कर चुके हैं और 20 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। 4.29 का रन रेट है। 35 ओवर के बाद 150 रन पूरे हुए हैं 6 विकेट खोकर। और चूंकि 116 पर छठा विकेट डाला था तो ये 34 रनों की एक भागीदारी भी आप कह सकते हैं कि परखनी शुरू हो चुकी है और ये बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है क्योंकि अफगानिस्तान का काफी हद तक जो आखिरी स्कोर है उसमें इस भागीदारी का रोल या भूमिका रहने वाली है। पहली गेंद फेलुक्वायो अब लौट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनकी गेंद को राशिद खान ने सुरक्षात्मक रूप से खेला। उसे गली पर फील्ड किया गया और वापस आ चुकी है वो गेंदबाज के पास। कुछ चर्चा करने के लिए टेम्पा बोवोमा को बुलाया है फिर अंपायर ने, कुछ उनको बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनसे। और इस बीच में फेलुक्वायो जो है इंतजार कर रहे हैं। हाँ, शायद थोड़ी सी उसकी जो सीम है उसको वो ठीक कर रहे थे, उसमें कुछ उधेड़ बुन जो सी हो जाती है उसको साफ कर रहे थे। और अब फिर से फेलुक्वायो ने गेंद फेंकी जो गेंद ऑफ स्टंप पर थी और उसको सुरक्षात्मक रूप से राशिद खान ने खेल दिया। रन नहीं बना और हमको लगता है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि राशिद खान को भी थोड़ा सा संयम के साथ खेलना चाहिए, तो लगता है कि यही कोशिश कम से कम वो कर रहे हैं। अपने स्वाभाविक जो उनका रूप है तेज शॉट मारने का, उससे बचा करके इस बार उनको मौका मिला, उन्होंने गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया और ये स्वीपर कवर को थोड़ा सा अंदर आकर गेंद उठानी पड़ी, लेकिन रन एक ही बन सकता था, एक ही बना। और इसके साथ ही अब स्ट्राइक पे आ गए हैं अज़मतुल्लाह अमरज़ई। सच पूछिए तो सबसे अधिक उम्मीद अगर अब अफगानिस्तान की बची हुई जो टिकी होंगी वो इसी बल्लेबाज पर टिकी होनी चाहिए। और उन्होंने भी बहुत समझदारी के साथ हल्के से टैप कर दिया गेंद को, गली से थोड़ा सा दौड़ कर आना पड़ा फील्डर को
लेकिन चूंकि थोड़ा दूर खड़े थे वो, तो एक रन देने का मौका मिला और अजमतुल्लाह उमरजई पहुंच गए हैं 48 के स्कोर पर, यानी अर्धशतक से 2 रन पीछे हैं अभी वो। फेलुकायू ने अब तक इस ओवर में 2 रन दिए हैं। शुरू की 2 गेंदें डॉट गेंदें थी, उसके बाद एक एक रन बना है। वो अगली गेंद फेंकने के लिए ओवर द विकेट दाएं हाथ से, और राशिद खान ने फिर लगभग वही नीति अपनाते हुए इस बार जो गेंद थी वो फील्डर के पास सीधे पहुंची, लेकिन वो फील्डर फिर भी इतनी दूर थे कवर पर कि आसानी से शॉर्ट कवर पर ही थे, लेकिन फिर भी इतनी दूरी थी कि एक रन लेने का मौका था। तो 30 बन गया इस ओवर का और अजमत फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, और आप कह सकते हैं कि लगभग वैसे ही इसे स्क्वायर थर्ड मैन पर फील्ड किया गया है और 1 रन अजमतुल्लाह उमरजई जो हैं उन्होंने 49 रन पूरे किए हैं, यानी अर्धशतक से 1 रन पहले, और चूंकि आखिरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया इसलिए अगले ओवर में भी स्ट्राइक उनके पास आ गई है, यानी कि इस मैच में अर्धशतक बनाने का अब जो मौका है वो उनके पास बना हुआ है पहली ही गेंद से अगले ओवर की। और जैसा कि आपको हमारे साथी बता रहे थे कि धीरे धीरे कुछ स्टैंड्स में दर्शक आ गए हैं, और चूंकि अधिकांश जो दर्शक हैं उन्हें आप मान सकते हैं कि वो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग हैं। हालांकि अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के समर्थक भी मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. केशव महाराज अपने अगले ओवर के साथ 9वां ओवर, और इसके साथ ही अजमतुल्लाह उमरजई का 50वां रन यानी उनका अर्धशतक पूरा हुआ। उन्होंने अपना बल्ला उठा करके अपने समर्थकों की ओर देखकर उनका अभिवादन किया। उनको बधाई देने के लिए राशिद खान उनके पास आए। हमारे स्कोरर सुनील लांडगे ने बताया कि ये 50 रन उन्होंने 71 गेंदों में बनाए हैं और उसमें 1 चौका 1 छक्का लगा है। हाँ, 1 छक्का उन्होंने लगाया है। जी। तो इस तरह से ये एक अच्छी खबर अजमतुल्लाह के रूप में अफगानिस्तान की टीम के लिए। और अब राशिद खान जो है सामना करेंगे। 156 पर 6 स्कोर है। इस गेंद को फिर राशिद खान ने हल्के हाथों से खेला और आसानी से उसे फील्ड कर लिया गया, लेकिन 1 रन फिर भी लेने का मौका बल्लेबाज के पास था। तो ये महाराज के इस ओवर में तीसरा रन बना, और इस बार दिशा थोड़ी उनकी भटकी थी, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा सके राशिद खान। उन्होंने कोशिश की थी, उसे लेग स्टंप पर गेंद थी और उसको वो दिशा देना चाहते थे, लेकिन सीधी वो फील्डर के पास गई और स्क्वायर लेग पर उस तरह से रन नहीं बन सका। अगली गेंद पर भी शॉर्ट कवर पर गेंद गई है सुरक्षात्मक स्ट्रोक के बाद रशीद खान के, और इस तरह से राशिद खान अभी हैं 13 रन पर 27 गेंदों में। और केशव महाराज की इस गेंद पर स्वीप करना चाहते थे राशिद खान, पूरी तरह से चूक गए। गेंद जाकर उनके पैड पर टकराई, लेकिन कोई अपील नहीं की गई है, क्योंकि यह अंदाजा गेंदबाज को भी था, विकेटकीपर को भी और कप्तान को भी, कि ये जो गेंद है ये शायद स्टंप्स पर टकराने वाली नहीं थी। तो इस तरह से 37 ओवर अब पूरे हो चुके हैं और 4.24 के रन रेट के साथ अफगानिस्तान 6 विकेट पर 157 बना चुका है। अजमतुल्लाह उमरजई ने 51 रन पूरे किए हैं 72 गेंदों पर, और 28 गेंदों पर 13 रन बना लिए हैं राशिद खान ने। एक हल्का सा व्यवधान फिर हमें नजर आ रहा है। बल्लेबाजों के पास
शायद उन्हें कुछ शीतल पेय के लिए या किसी और मतलब के कारण उनकी टीम के साथी आए हैं। थोड़ा सा सुस्ताने का मौका फील्डिंग साइड को भी मिल गया है। अंपायरों ने जाके जरा देखा कि क्या मामला है और उसके बाद वो भी अपनी जगह पर लौट रहे हैं। तो फिलहाल अभी खेल रुका हुआ, लेकिन अब जो अफगानिस्तान के बाहर से जो समर्थक आए, जो उनकी टीम के साथी थे, वो लौट के वापस जा रहे हैं और फिर से खेल शुरू होने की तैयारी हो रही है। फेलुक्वायो ही अपना अगला ओवर फेंकेंगे। अब तक उन्होंने 4 ओवर फेंके हैं, 17 रन दिए हैं, विकेट कोई नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने रनों की गति को नियंत्रित रखने में सफलता प्राप्त की है। उनका सामना करेंगे अजमतुल्लाह उमरजई 51 रन के अपने स्कोर पर। 37 ओवर पूरे हो चुके हैं और फेलुक्वायो जो है वो दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने जा रहे हैं। वो दौड़ना शुरू किया उन्होंने और ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी और शॉट बहुत अच्छा लगाया था, लेकिन जैसा कई बार होता है कि खूबसूरत शॉट देखने में, लेकिन सीधा फील्डर के पास। तो अगर आप अंतर न ढूंढ पाएं, गैप न ढूंढ पाएं, तो खूबसूरत शॉट तो होता है, अच्छा भी लगता है देखने में, मार के बल्लेबाज को भी खुशी होती है, लेकिन उसका लाभ टीम को नहीं मिलता क्योंकि रन नहीं बनता। बहरहाल एक उससे बल्लेबाज के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तो होती ही है। अगली गेंद अजमतुल्लाह को, और इस बार उन्होंने हल्के से उसको स्टीयर किया और वो स्वीपर कवर से दौड़ करके फील्डर ने अंदर आकर फील्ड किया उसको और गेंद को वापस पहुंचाया गेंदबाज के पास। 1 रन लेने का मौका आसानी से बल्लेबाज को मिला। 1 रन जुड़ गया उनके स्कोर में। अब तक अजमतुल्लाह ने आज अच्छी सधी हुई बल्लेबाजी की है। 74 गेंदों पे 52 रन बनाए हैं। अब राशिद खान जो हैं वो स्ट्राइक ले रहे हैं फेलुक्वायो की अगली गेंद पर। फील्डिंग को अगर हम देखें तो मिड ऑफ और मिड ऑन है, कवर है, गली है, स्लिप कोई नहीं है, मिड विकेट है और स्वीपर कवर, और जैसा कि गिरधरन जी ने बताया था बिल्कुल उनके सामने बाउंड्री पर खड़े हुए, लेकिन इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला राशिद खान को, अजमतुल्लाह को, क्षमा कीजिएगा। उन्होंने गेंद को हल्के से गैप में घुमाया और 1 रन लेने का मौका उन्हें मिला। उन्होंने अब तक स्क्वायर के सामने 48 रन बनाए हैं। तो उनकी जो पसंदीदा जगह है वो ये नजर आती है और इस बार राशिद खान ने वही किया जिसकी शंका थी। उन्होंने जोरदार बल्ला घुमाया और गेंद उनके बल्ले का किराया लेते हुए क्विंटन डी कॉक के पास जा पहुंची। उनके बिल्कुल कहना चाहिए बल्ले का ऊपरी छोर जो है छुआ उसने, और फेलुक्वायो को ये पहली सफलता वो बहुत पसंद है। राशिद खान ने अंततः जिम्मेदारी सच पूछे तो नहीं दिखाई, क्योंकि इस तरह का शॉट खेलने की फिलहाल अभी कोई जरूरत उनको नहीं थी। आवश्यकता इस बात की ज्यादा थी कि वो स्ट्राइक अधिक से अधिक अजमतुल्लाह उमरजई को दें, लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे उनका स्वाभाविक जो खेल है वो आक्रामक है, तो उन्होंने काफी जोर से, ये असल में शॉर्ट गेंद थी, एक उनको लगा कि मौका है पुल करने का, तो पुल करने के लिए उन्होंने बल्ला बहुत जोर से घुमाया, लेकिन उस घुमाने की प्रक्रिया में हल्का सा संपर्क उनके बल्ले के बिल्कुल टो एंड जिसे कहते हैं छोर से, वहां से गेंद का हुआ और वो बिल्कुल क्विंटन डी कॉक के पास पहुंची, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तो 7वां विकेट 160 के स्कोर पर जा गिरा अफगानिस्तान का, और अब नूर अहमद 9वें नंबर के बल्लेबाज आ गए हैं और फेलुक्वायो जो हैं वो उनको
पहली सफलता 20 रन देकर, और उनका 5वां ओवर अब समाप्त होने को है। एक 160 रन से कहां तक अब पहुंचा पाएंगे अजमतुल्लाह, और उनको कितना साथ दे पाएंगे उनके साथी, जो निश्चित रूप से उतने सक्षम बल्लेबाज नहीं है, लेकिन उत्साह और लगन के साथ खेलने पर हमने देखा है कि कई बार जो ये जिनको बाद के बल्लेबाज होते हैं, मूल रूप से जो गेंदबाज होते हैं, तो वो भी कई बार अच्छा योगदान कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि आज क्या घटता है, किस तरह घटता है। आखिरी गेंद फेलुकॉइस ओवर की फेंकने जा रहे हैं नूर अहमद को, जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं, और उन्होंने किसी प्रकार से कोशिश करके उसको बचाया, अपने बल्ले को अपने शरीर के सामने लाए, गेंद उनके बल्ले से आके टकराई, उनको लगा कि ये गेंद लुढ़क न जाए, तो पैर से भी उन्होंने उसको फिर रोका। अंत में बहरहाल कोई नुकसान हुआ नहीं, ओवर खत्म हुआ 38 ओवर के बाद 7 विकेट पर 160 अफगानिस्तान। And thank you, Sunil Lange, for a very interesting piece of information. All the 7 Afghanistan wickets that have fallen today have fallen to caught. All have been dismissed by caught only. There'll be no bowled, no LBW, no runouts, and no other mode of dismissal. And 5 of those have been the scalps of Quinton de Kock. और एक चीज मजेदार ये भी है कि एक जो एलबीडब्ल्यू का डीआरएस लिया गया वो बेकार गया, यानी so all 7 wickets in the same fashion, and Quinton de Kock has had a very profitable day behind the stumps. And Keshav Maharaj coming into bowl his last over. Starts off left arm around the wicket. And Azmatullah Omarzai quietly plays him towards short square leg, and they cannot take a single. Rashid Khan literally threw his wicket away in the previous. This time he sweeps it, and it goes straight to Temba Bavuma. Temba Bavuma claims the catch, but the two umpires are conferring. We're not very sure whether the ball carried to him. Bavuma is very, very convinced that he caught it cleanly, but the umpires are conferring, and they have referred it upstairs, and this actually would mean disaster for Afghanistan, because we were talking about the need for Azmatullah Omarzai to stay till the very end. He is on 53 at the moment, and he actually looked very comfortable, and we thought that he will be farming the strike for most of the time, and maybe give only 1 or 2 balls for the other batsmen to play, and if the opportunity presents, he will then go for the big shot. But on this occasion he went for the sweep shot, even though there was a man stationed at short fine leg. So it was not even a calculated risk, it was some kind of a bravado from Azmatullah Omarzai, and Temba Bavuma was very certain that he had taken the catch, but it looks as if that has not been the case. The umpires have told the South African players to get on with the game. Omarzai is safe, alive, kicking, and he's going to fight another day. Keshav Maharaj again, and this time Omarzai is not going to take any risks. He has learnt his lessons. It is probably the best thing to see of Keshav Maharaj, who is bowling his final over. 2 for 23 from his 9.3 overs. He has been a real threat that has been turned away on the own side. Keshav Maharaj getting the ball to grip, spin and bounce, and he always gets a very good drift. So he is more than a handful. He has been one of the standout bowlers in this tournament. And now there is a silly mid-off to add to the pressure. There is a silly mid-on as well. This time he's gone for the sweep shot. It's in the air of the top edge. Temba Bavuma is trying to get underneath it. It is beyond the reach, and the batsmen have survived. They come back for 2. So Azmatullah Omarzai will not be able to resist the temptation of playing the sweep shot.
even though there were only 2 balls into the spell of Keshav Maharaj, he couldn't resist the temptation. He went for the sweep shot. Once again, I think he lived dangerously and just about managed to escape, but placed the last ball defensively back along the track. That is the end of Keshav Maharaj's spell. 2 for 25 from his 10 overs, which also had 1 win. Rabada 6 overs, no win, and 25 runs, no wicket. Aiden Markram 4 overs, 3 balls, none for 25. Lungi Ngiri 6.3 overs, no win, 34 runs and 2 wickets. Gerald Coetzee 7 overs, 1 win, 29 runs and 2 wickets. And Phil Bukayo 5 overs, no win, 20 runs and 1 wicket. So 162 for 7 after 39 overs. And Phil Bukayo with his tails up after some success now into the youngster, the young Noor Ahmed. Noor Ahmed plays back defensively. Noor Ahmed has to prove his mettle today. It's a real test of his character. He's up against the top north side. His side is in a ditch. He has to help the senior batsman Azmatullah Omarzai drag them out of the woods, and his role will be very critical. Phil Bukayo bowls outside the off stump, and that's had been glided in that gap between the wicketkeeper and the fine third man. It's gone beyond the reach of the diving third man fielder. He'll get 4 for it. So Noor Ahmed getting a boundary in a very, very orthodox fashion, and I'll tell you, he was on top of that steering shot from the very beginning itself. He had eyed the spot. There is a very big gap between square third man and the wicketkeeper, and all he had to do was to ease it into the gap, which he did it with great finesse. This time he has dapped the ball past the diving cover fielder. They'll get 1, and that's all they will be content with. But Noor Ahmed doing the job now. He's amongst the runs, and it's up to him to stay for a long, long while. He should take a leaf out of the book of the Australian captain, Patrick Cummins. Patrick Cummins stayed solid at one end. He never threw his wicket. He didn't look like getting out. And Maxwell at the other end simply ramped and ravaged and scored the runs. So it's left to Omarzai to score the runs, and he will be there. Yes, and Omarzai has lofted that one over the bowler's head. Mahbooba has no chance, 4 runs. So now we are seeing a flurry of boundaries in this over. There was a steer to the third man, and now a lofted off drive. Both for boundaries, 9 runs of the over already. And Azmatullah Omarzai on to 59. We had a scare in the previous over when he tried a sweep shot and Babuma claimed the catch, only to be negated by the third umpire. He played another sweep shot, that top edge just going beyond the reach of Babuma. This time he glides that off his hips now. That's a good deflection, and it goes to the fielder, who is pretty deep, and they just about amble for the single. So Omarzai will keep most of the strike as well. There's still a ball left in this over, but then I think Noor Ahmed can be trusted to play off at least Phil Bukayo. He had scored a boundary of the first ball, so I suppose Omarzai has enough faith in him. He doesn't want to farm the strike too much. And this time he glides it. Has he got a pad onto that? At least the bowler is excited and he lets out an appeal. Wait the umpire signal. Yes, the umpire raises his thigh and then taps his knee to indicate that it was a leg by. And at the end of the 40th over, they are 173 for 7. And Azmatullah Omarzai going. Commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder.
जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से विश्व कप का ये 22वां मैच, कुल 45 ग्रुप मैच हो रहे हैं, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट पर 173 रन 40 ओवर के बाद 4.33 के रन रेट से। अजमत 60 रन बना चुके हैं 83 गेंदों पर अभी स्ट्राइक पर है रबाड़ा के सामने नूर अहमद जो कि 18 साल के हैं। मुख्य रूप से उनकी पहचान बाएं हाथ के एक स्पिनर के रूप में है, गेंदबाज के रूप में है, लेकिन अभी वो अपनी कैशोरे में ही हैं, यानी अगले साल जनवरी में वो 19 साल के होंगे। तो जहां मोहम्मद नबी सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उनसे लगभग आधी उम्र के खिलाड़ी हैं नूर अहमद, और इस समय उनको साथ देना है अजमतुल्लाह उमरजई का कि जितना संभव हो उतने सम्मानजनक स्कोर तक वो अफगानिस्तान की पारी को पहुंचाएं। अभी तक नूर अहमद ने साथ निभाया है, अभी ज्यादा गेंदें उनको खेलने को मिली नहीं है। एक गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेट कीपर के दाईं तरफ से चली गई थी बाउंड्री के पार, चूंकि स्लिप नहीं है इसलिए वो एक सेफ शॉट है। ऐसा ही एक शॉट फिर खेलने की कोशिश उन्होंने इस बार की, अब स्लिप भी है, लेकिन ये जो शॉट था ये आप कह सकते हैं कि लगभग तीसरी स्लिप के पास जो खिलाड़ी हैं उनके पास गेंद पहुंची और कैच नहीं था, उन्होंने उसको फील्ड कर लिया, रन बनाने का मौका नहीं था। तो 3 डॉट गेंदें इस ओवर में अब तक रबाड़ा की आ चुकी हैं। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात ज्यादा बड़ी होगी अफगानिस्तान के लिए अगर उनके विकेट अभी और गिर जाएं तो। और ये एक संभावना बनी थी क्योंकि नूर अहमद का कोई बहुत नियंत्रण नहीं था उस शॉट पर जो खेला उन्होंने। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद आई थी, तेज गेंद थी, उनके बल्ले से लग करके उछली और फील्डर जो एक्स्ट्रा कवर पर थे उन्होंने दौड़कर कोशिश भी की पकड़ने की, लेकिन उनको छकाते हुए उनसे थोड़ी दूर जाकर गेंद गिरी। इस तरह से 1 रन बन गया नूर अहमद का और दूसरी तरफ वो दूसरी तरफ चले गए, यानी कि स्ट्राइक अब आ गई अजमतुल्लाह उमरजई के पास। ये गेंद रबाड़ा की और उस पर बहुत अच्छी तरह से एक शॉट खेला अजमतुल्लाह ने, स्ट्रेट ड्राइव था हालांकि मिड ऑन और गेंदबाज के बीच में से, लेकिन जो मिड ऑन के खिलाड़ी चूंकि पीछे हैं तो उन्होंने उसको फील्ड किया। 1 रन लेने से फिर भी बल्लेबाज को रोक नहीं सके और इस तरह से स्कोर जो है उसमें 1 रन का इजाफा और हुआ। 175 स्कोर पहुंच चुका है। नूर अहमद ने फिर इस बार उन्हें लेग स्टंप पर गेंद मिली थी रबाड़ा की, ये जिसको उन्होंने किसी प्रकार से अपने लेग साइड में खेल दिया। उनके बल्ले से टकरा कर गेंद गई और भाग कर आए मिड विकेट से खिलाड़ी। 1 रन बनाने का मौका फिर भी उनको मिला। तो अब नूर के पास स्ट्राइक भी रहेगी और स्ट्राइक के साथ साथ अब उनका स्कोर हो गया है 7 रन 10 गेंदों पर और कुल स्कोर हो चुका है 176। और फेलू पुवाई जो है वही अपना गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। 6 ओवर कर चुके हैं जिसमें उन्होंने 30 रन दिए हैं और इसके पिछले ओवर में उन्होंने 11 रन दिए थे। 1 लेग बाई थी लेकिन कुल मिलाकर 11 रन मिले थे और शायद अफगानिस्तान की इस पारी में सबसे ज्यादा रन वाला ओवर वही था। तो अब इस ओवर में क्या होता है इसको अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका दोनों रुचि के साथ देखेंगे। फेलू को आयोग गेंद करने को तैयार, नूर अहमद उनको खेलने के लिए तैयार। चारों ओर उन्होंने एक बड़े अनुभवी बल्लेबाज की तरह देखा कि कौन सा फील्डर कहां है, मानो वो तैयारी कर रहे हो कि शॉट कहां खेलना है। और युवा जो
खिलाड़ी है उसकी उमंग में कमी तो होती नहीं, अनुभव जरूर कम होता है। फलूकॉय गेंद करने के लिए आए दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और ये एक्स्ट्रा कवर में बल्कि ये शॉट गया उनका, लेकिन फील्डर के पास सीधे और रन बनाने का मौका नहीं। केशव महाराज ने अपने आज 10 ओवर का स्पेल पूरा कर लिया है और उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट दिए, तो 2.5 रन प्रति ओवर उन्होंने खर्च किए। फलूकॉय अगली गेंद के साथ, और नूर अहमद ने इस गेंद को जोर से मारना चाहा था पर गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, और क्विंटन डिकॉक ने इसको अपने दस्तानों में लिया और फिर स्लिप के फील्डर के जरिए एक फील्डर से दूसरे फील्डर से होते हुए गेंद वापस गेंदबाज फलूकॉय के पास पहुंच गई है। अब ये आखिरी 10 ओवरों का खेल है और इसमें अफगानिस्तान क्या कर सकेगा इस पे सबकी निगाहें रहेंगी। फिर कोशिश की इस बार नूर अहमद ने गेंद को, क्योंकि उनको गेंद लगभग ये लेग स्टंप पर तो नहीं कह सकते, लेकिन मिडिल और लेग स्टंप पर थी। उन्होंने इसको घुमाया लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी पास में थे, गेंद सीधी उनके पास गई, तो रन बनाने का मौका था नहीं और रन बना नहीं। तो कुल मिलाकर केशव महाराज ने 9 मैचों में 14 विकेट लिए हैं इस विश्व कप में, और ये इस बार नूर अहमद को मौका मिल गया। ओवर पिच गेंद थी और उस पर उन्होंने बल्ला जो लगाया तो कवर के खिलाड़ी को थोड़ा छकाते हुए गेंद उनके पीछे निकल गई और बाउंड्री से स्वीपर कवर के खिलाड़ी दौड़कर आए। इस तरह से 1 रन बनाने का मौका नूर अहमद को मिला। स्ट्राइक अभी तो खैर अजमतुल्लाह के पास है, लेकिन 2 गेंदें अभी इस ओवर में बाकी हैं। ये ओवर फलूकॉय का रन की दृष्टि से अब तक बेहतर रहा है, क्योंकि इसमें 3 डॉट गेंदें रही हैं और केवल 1 रन बन सका है। अब अजमतुल्लाह उनके सामने है और ये उन्होंने जो शॉट खेला, ये काफी चतुराई के साथ खेला उन्होंने 1 रन के लिए, और 1 रन उनको मिला भी। इसमें कवर की तरफ खेला गया शॉट था और उनको आसानी से इसमें 1 रन मिला। फिर से नूर अहमद स्ट्राइक पर है और फलूकॉय की ये इस ओवर की आखिरी गेंद, अगर वो वाइड नहीं होती तो, और इसको बहुत अच्छी तरह से नूर अहमद ने खेला है। इतना अच्छा खेला है कि ये गेंद पता नहीं चल रहा था, लेकिन तेज आउटफील्ड है, घास से भरी हुई, और दौड़ लगाई कोई ने उसको रोकने के लिए, लेकिन वो 4 रन हुए। तो नूर अहमद का ये दूसरा चौका, एक उनका चौका स्लिप की तरफ से निकल कर गया था, पर ये जो है निश्चित रूप से एक बेहतर शॉट था, और इसको कोई दौड़कर डाइव मारकर जितनी क्षमता उनमें थी वो सब कुछ उन्होंने झोंक दिया था, लेकिन फिर भी गेंद को बाउंड्री तक पहुंचने से वो रोक नहीं सके। और इसके साथ ही अफगानिस्तान का जो स्कोर है हो गया है 182 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और फिर उनका जो रन रेट है वो 4.33 पर है। नूर अहमद 12 पर और अजमतुल्लाह उमरजई 62 पर। Splendid shot from Noor Ahmed. That had a touch of class over there. That's been lofted over mid-wicket, and Rabadak has been treated with contempt by Azmatullah over mid-wicket. And we await the umpire signal, and probably it's a 4. It went 1 bounce into the fence, but he picked the spot well. Shortish delivery from Rabadak, just a little back of a length, and Azmatullah at the moment is into his strides. He has got his eye in. He judged the length very well, picked the slot, and then it was well wide of the fieldsman. 2 bounces into the fence for 4. He moves on to 66 now. Rabada steaming in again, but that's been played very quietly with deft hands, soft hands, just short of the fielder at short cover, and they run through for a single.
Noor Ahmed, the young Noor Ahmed. Noor Ahmed is just 18. He will turn 19 4 months later, but he has already shown enough promise, not only as a left-arm bowler, but also as a late tail-end batsman. Again presenting the full face of the bat to Rabada and driving him towards mid-off. Thinks in terms of a single. Rabada gives him a glare, and that in itself should be seen as some kind of a compliment, because when a fast bowler of the caliber of Rabada gives you a glare, it means that your audacity is being recognized and noticed. This time he goes for the pull shot to one that was also dug in short, but that hurried on to Noor Ahmed, and it was past him even before he could complete the shot, through to the wicketkeeper, and there can be no run. No damage done as well. And Azmatullah Omarzai coming down the pitch, he has a word with Noor Ahmed. I think he's advising the young teenager to tone down, calm down, and then play sensible cricket. And that's what he does this time. Rabada not able to hold on to that one on his follow through, but then he was completely off balance when that ball came back to him, and it probably was a chance. Yes, it was a hot chance, but he just could not bend to hold on to that one. It went between his legs towards mid-off, and the batsman went through for a single. So Noor Ahmed living dangerously, but there isn't a dull moment when he is out there at the crease. Rabada again, right arm over the wicket, close to the stumps. That's off driven, but it's driven too crisply. It's timed too well, and it goes very rapidly to the man at mid-off, and they can't even think in terms of taking a single. And at the end of the 43rd over, Afghanistan 188 for 7. So while it can't be considered to be a competitive total, they still have 7 overs more. If they can last the course, they could probably post something in the vicinity of 230. And if Naveen can get a couple of early breakthroughs, the spinners can tighten the screws around the South African batsman, we could have a game on our hands later in the evening if Afghanistan still bat sensibly. They are not out of the match even now. Certainly South Africa hold the aces. They are in the driver's seat. They are having the whip hand. But Afghanistan, though down, probably not out. Gerald Coetzee in charge of the bowling runs away from us. A slip, a gully. That's quite driven, but there is a man there at deep cover who will ensure that nothing more than a single is conceded. The slip was there only probably for Noor Ahmed, because the moment Omarzai comes on strike, the sweep goes towards deep third man. So probably they think that they have a chance with the inexperienced tailender, and they want to pressurize him and lull him into a false shot by keeping a slip. But with the very experienced Azmatullah Omarzai, they have gone back to conservative tactics. Here he bowls again, right arm over the wicket. That's very crisply off driven, but a good diving stop by the captain, Bavuma himself. He's leading by example on the field. Not often do you see a captain patrolling the boundary, running all the way to the boundary, retrieving the ball from the boundary. Usually captains station themselves at slip or at short cover, from where they can dictate terms to the team as well as have conversation with the bowlers. But Temba Bavuma is cast in a different mode. Short, and that's punched off the back foot. They've taken one. They'll come back for second, I think, but it's gone past the boundary for 4. Gerald Coetzee banging that one a little too short, and he gave lot of room for the batsmen to free their arms, and then it's bashed with great amount of power in the gap. Noor Ahmed
is a very strong lad, young lad, strong lad, aggressive lad. He may be a tad short in experience. He might get excited, but he's not going to back off from a short ball like that. He just hammered it with great panache. Good comeback delivery from Jalal Coetzee. Yokel and delivery that has Noor Ahmed in all sorts of trouble. And Jalal Coetzee also comes down the wicket to give him a stay. A typical fast bowler's reaction to have been hit for a boundary, to have been driven on the offside by a tail-ender for a boundary. He comes back and gives him a glare. But then the experienced Omarzai also having a word with the inexperienced teenager, telling him to keep his calm and not got excited. But he tries to off-drive that one. But the wrist rolling over and the ball just going along the ground, and it just not reaching even Bavuma. But maybe he was lucky that he checked the shot and it didn't go up to Bavuma, because if it was not timed that well, he'd have just spooned it to Bavuma at mid-off. Bavuma having a word with Jalal Coetzee, and Coetzee now ready to bowl right on over the wicket. Precisely side one action, banks that one short, and he was not able to control the intended pull shot, but lucky for him that it dropped a few yards short of the fielder at long leg, and with that he moves on to 19, and at the end of the 44th over, South Africa, Afghanistan rather, are 195 for 7. Azmatullah Omarzai, the key to the total that Afghanistan can post. Commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. जो नूर अहमद की पारी है वो बिल्कुल जैसे एक किशोर की ही पारी है, जिसमें बिल्कुल निर्भीकता है। और मजे की बात यह है कि 19 रन 23 गेंदों पर उन्होंने बनाए हैं। अब उसको 24 गेंद कर लीजिए, क्योंकि रबाड़ा के इस ओवर की पहली गेंद को उन्होंने वापस गेंदबाज के पास खेल दिया धीरे से। तो सबसे अच्छा शायद स्ट्राइक रेट जो है वो नूर अहमद का हो सकता है अब तक जो उन्होंने बल्लेबाजी की है। 24 गेंदों में 19 रन, और उसमें और खासतौर से जो उनका स्ट्रेट ड्राइव था वो तो बहुत ही अच्छा शॉट था, और स्लिप से जो निकल के जो गया था वो भी, और अभी जो शॉट मारा था उन्होंने कवर की तरफ, वो भी बहुत अच्छा शॉट था। तो 35 रन बन चुके हैं 38 गेंदों में, जिसमें नूर अहमद का योगदान 20 का है, अजमतुल्ला ओमरजई का योगदान 15 का है। तो दिलचस्प बात यह है कि नूर अहमद का योगदान इस साझेदारी में जमे जमाए बल्लेबाज से ज्यादा का है। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि अजमतुल्ला ओमरजई पर दबाव कुछ कम होता है। ये रन वरना अगर सारी जिम्मेदारी रन बनाने की वरिष्ठ बल्लेबाज के ही सर पर आ जाए तो फिर निश्चित रूप से उसे खतरे लेने पड़ते हैं, जोखिम उठाने पड़ते हैं। पर अगर दूसरी तरफ से भी कुछ रन बनते चले जाएं, जैसा कि नूर अहमद कर रहे हैं, राशिद खान से भी यही उम्मीद रही होगी, लेकिन वो हो नहीं सका, और उन्होंने लगभग अपना विकेट एक गैर जिम्मेदार शॉट से मैं कहूंगा गंवा दिया। और ये एक फिर से अच्छी कोशिश नूर अहमद की, उन्होंने उठाकर कोई कोशिश नहीं की उन्होंने शॉट नीचे रखने की, और स्वीपर कवर पर गेंद सीधे गई। रबाड़ा थोड़े खिन्न हैं कि ज्यादा प्रभाव वो डाल नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब तक इस ओवर में उन्होंने 2 रन दिए हैं। अजमत उल्लाह ने ये रन बनाया था, और अब फिर से नूर अहमद स्ट्राइक पर आ गए हैं। रबाड़ा का ये 9वां ओवर है, और ये गेंद उनकी जो थी वो एक बाउंसर की तरह थी, शॉर्ट गेंद थी, ऊंची उठी, और अंपायर ने उनको इशारा किया कि एक ओवर में आप एक ही फेंक सकते हैं, जो कि नियम है। क्रिस्टोफर ब्राउन ने उनको ये संकेत किया, और रबाड़ा ने उनके इस निर्देश को अपनी आंखों से स्वीकार किया और वापस बॉलिंग बात पर पहुंचे। रबाड़ा राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद
लगभग यॉर्कर थी, लेकिन इसको अच्छी तरह से नूर अहमद खेल पाए। उन्होंने इसको मिड ऑन और के दाईं तरफ खेला, फिर खिलाड़ी को वहां फील्डर को दौड़कर आना पड़ा, 1 रन बना और इससे नूर अहमद का स्कोर भी बढ़ा, वो हो गया 21। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ठीक ठाक सी साझेदारी फिर पनपने की संभावना दिख रही है। 27 गेंदों में नूर अहमद ने 21 रन बनाए हैं और अजमतुल्ला 91 गेंदों में 69 रन बनाकर खेल रहे हैं। 7 विकेट पर 198 का स्कोर है और 4.4 का रन रेट है। जेराल्ड कोएट्जी अपना 9 ओवर लेकर आ रहे हैं। 36 रन देकर 2 विकेट उन्होंने दिए हैं। काफी तेजी से दौड़ते हुए वो आए, लेकिन फिर खुद ही वो रुक गए। बल्लेबाज की तरफ से कोई समस्या नहीं थी। दोबारा वापस जाकर फिर से वो अपनी बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। और नूर अहमद ने बहुत तेज शॉट एक मारा है, लेकिन यह है कि वो फील्डर के पास पहुंचने का और रुकने का मौका था स्वीपर कवर से। उन्होंने दौड़कर उसको थर्ड मैन की दिशा में दौड़ना पड़ा, पर उन्होंने उसको रोक लिया। पर 1 रन नूर अहमद ले गए और अब स्कोर हो गया है 199। तो ये पार्टनरशिप जो है ये 39 की हो चुकी है 44 गेंदों में। निश्चित रूप से ये एक अच्छी सक्षम साझेदारी ही कही जाएगी। ये गेंद कोएट्जी की बहुत अच्छी गेंद थी, सीधी ये जाकर के अजमतुल्ला के शरीर पर गई, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार न केवल उस गेंद को अपने बल्ले से रोका, बल्कि वो गेंद ऐसी दिशा में गई ऑफ की ओर कि फील्डर को भाग कराना पड़ा और 1 रन मिला। और इसके साथ ही अफगानिस्तान के 200 रन पूरे 45.2 ओवर में। पहला उनका 81 में बना था, दूसरा 71 में और ये 65 यानी 58 और 65 यानी इस बार 65 गेंदों में ये 50 रन पूरे हुए। नूर अहमद ने फिर से कोशिश की, क्योंकि गेंद उनको लेग स्टंप पर की गई थी और उनको पास जगह नहीं थी, तो उन्होंने घूमकर उसको मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए वो कोई ठीक ठाक शॉट खेल पाने में। और लगता है कि उनको हल्की सी इसमें, बल्कि उनके हेलमेट में जाकर गेंद लगी। तो आमतौर पर जो सावधानी बरतनी पड़ती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक तेज गेंदबाज की गेंद जब आपके हेलमेट पर आकर सामने से लगती है तो हेलमेट आपको बचाता तो है, मगर फिर भी यह है कि एक ध्यान रखना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है कि कोई ज्यादा बड़ी परेशानी की बात ना हो। तो वही स्थिति चल रही है। अफगानिस्तान के जो मेडिकल टीम के लोग हैं वो आए हैं। असल में पूरी तरह से वो गेंद को देख उनकी नजरें हट गई थी। वो पुल करना चाहते थे, मगर उसके लिए जगह नहीं बना पाए और गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए उनके हेलमेट में जाकर टकरा गई थी। आज जो गेंदबाजी की है दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने, तो उसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंदें तो नहीं फेंकी उन्होंने, लेकिन फिर भी यह है कि काफी संख्या रही है। और अब फिलहाल इस समय अभी वो उनकी चिकित्सकीय पड़ताल का काम पूरा नहीं हुआ है। और एक और चीज हम देख पा रहे हैं बड़े स्क्रीन पर कि जो ओवरों की संख्या है वो उतनी ही है जितनी कि इस समय तक हो जानी चाहिए थी। क्योंकि होता यह है कि अगर आप ओवर में ज्यादा समय लगा दें तो आखिरी ओवर में आपको उसका दंड भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको एक खिलाड़ी और अंदर लेना पड़ता है 30 गज की सीमा के। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है अभी तक जो ओवर जो हैं वो लक्ष्य के अनुसार ही चल रहे हैं। और इसमें मानना पड़ेगा कि इसमें केशव महाराज का जो 10 ओवर है और साथ साथ मरकरम ने भी गेंदबाजी की, तो स्पिन गेंदबाज कम समय लेते हैं तेज गेंदबाजों के मुकाबले। जबकि व्यवधान तो काफी आए आज, लेकिन फिर भी लक्ष्य तक ही अभी सीमित है ओवरों की संख्या। और अभी कोई चिंता की बात इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं है।
कोयजी अब जो ओवर उनका थोड़ा व्यवधान की स्थिति में आ गया था, फिर से आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 3 गेंदें उनको फेंकनी है, वो चले। नूर अहमद उनको खेलने के लिए तैयार, और ये उन्होंने शॉट लगाया लेकिन गेंद ने उनको भी छकाया, और उसके बाद वो विकेट कीपर जो थे वही उसको रोक नहीं सके। इस प्रकार से ये एक बाउंड्री आप कह सकते हैं। इसमें हुआ ये कि उनका अंदरूनी किनारा लगा, उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, जो उसके बाद हो कुछ भी सकता था, वो गेंद उनके स्टंप पे भी जा सकती थी। पर नूर अहमद जैसे कहते हैं कि जो साहसी है उसका भाग्य साथ देता है, तो उनका साथ दिया भाग्य ने। वो बाहरी किनारा लेकर के, बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद लेकर ऐसे गई कि उसको विकेट कीपर भी रोक नहीं सके, और वो एक बाउंड्री 4 रन नूर अहमद के खाते में और आ गए। अब वो 26 रन पे पहुंच गए हैं 31 गेंदों में, और कुल स्कोर हो चुका है 204 7 विकेट पर। 1 गेंद और बची है कोयजी की इस ओवर की, और नूर अहमद उससे खेलने के लिए तैयार। बीच की एक गेंद जो थी उसको उन्होंने उसको सुरक्षात्मक ढंग से खेला था और रन नहीं बन सका था। इस बार फिर से एक बाउंसर, लेकिन इस बार नूर अहमद गलती कर बैठे, वैसी ही गलती जैसी राशिद खान ने की थी। उन्होंने बल्ला घुमाया पूरी ताकत से, और उसका बाहरी सिरा लेते हुए जो गेंद है वो क्विंटन डिकॉक के पास जा पहुंची। उनका ये 6वां कैच इस पारी का, और कोयजी के लिए 3रा विकेट, और नूर अहमद की साहसी पारी का इसके साथ ही समापन हो गया है। Noor Ahmed departs. The Afghan tail wagging, of course, not before contributing a very valuable 26. He was probably rattled by the blow that he received on his helmet just a couple of balls later, because after that he was not his normal cocky, cheeky self, which he was before getting that blow. He was aiming for the juggler of almost every ball. He got away with an inner edge which just passed the leg stump and went past the wicketkeeper as well, down to the fine leg fence for 4. And after that was this ball. This was of course a good bouncer which followed Noor Ahmed. It came into his body. He just wafted at that one and edged it through to the keeper. Dickok taking his 6th catch. And Bangladesh now 8 down with still 4 overs to go. And with the Bangladeshi innings just about to come to an end, please don't go away. Keep tuned in to the All India Radio, because we have a special show at that time called Kaun Banega Vijeta. Omarzai continues in the same fashion as if nothing has happened. He has driven that through long off for 4. And he moves on now to 74 and Afghanistan to 208 for 8. This special show called Kaun Banega Vijeta will be discussing of whatever transpired in the Afghanistani innings. They will also be discussing the prospects of the match of the second half, and experts will be involved. So please don't go anywhere. Continue to be tuned in to your radio sets. That's a lofted off drive, but off the inner edge, it goes towards deep cover. They've taken one, they're coming back very hard for the second. The throw is wild and they're finished 2 then. 76 Omarzai moves. Omarzai is now going for broke, and he knows that there are only 4 overs left. Mujibur Rahman is out there in the middle. He's no great shakes with the bat, and after that Naveen is to follow. So Omarzai knows that he has to make he has to make all the hay while the sun shines, and he is taking every opportunity to score. So the fielders are moving around now. Mid-off moves to long off, because he's targeting the offside.
the long off is right there at the fence. And that's been played towards mid-off where Bauma himself does the fielding. And a single across, taking the score to 210. Guinea now will be bowling to Mujib Rahman. Mujib-ur Rahman. No great shakes with the bat. Known more for his off-spin. And he will have a critical role to play when South Africa come to bat. Guinea again, right arm over the wicket. This time Mujib has a swing at that one. It's taken an elevation off the top edge, but Coetzee can't quite get to it. It sailed over the fence for maximum. And what a way to open your account. It is exciting for any batsman to get underway with a six, more so for a tail-ender. And Mujib really has set the stands alight. The spectators are dancing in the aisles here. Some of them just enjoying the game, some others supporting Afghanistan. That's very cleverly and craftily played in the gap. It was in the air for some time, but then just nudged into the gap. Mujib showing great cricketing common sense. Of course, we expect him to be a crafty, canny off-spinner, but his batting common sense is a revelation. The Afghanistan tail really has whacked. The top order might have disappointed, but the tail has shown that they have got pluck, they have got spunk, and as Rajiv was telling you, if you are plucky, you will get lucky. 218 for 8 as we approach the end of the 47th over. Giri again, and that's a straight drive, lofted on drive, and that's hoisted again hard, high, into the stands for another six. But this time it's from the blade of Azmatullah Omarzai. That was a technically correct shot. 2 sixes of the over, and Afghanistan have raced to 224 for 8. We were discussing some time back that 230 might be the kind of score that Afghanistan would want to post, and if they get a couple of quick wickets, their spinners can actually make things very difficult for the South African batsmen. They are very nearly there at 224 for 8. At the end of the 47th over, Azmatullah Omarzai on 83 from 96 balls, so he must be eyeing a ton as well. And Mujib-ur Rahman giving him very good support. And this over costed 90 runs. This has been the most expensive over in the innings. Gerald Coetzee this time into Mujib, and Mujib attempts to glide that delivery, which was pitched outside the off stump and moved further away, but doesn't get an edge because he had already backed away to the onside when he played that shot. He wanted to smash it through the offside. Had he stayed in his original batting position, he might have been in a position to glide it through that big gap between gully and the wicketkeeper. Here is Coetzee again, right arm over the wicket. This time he has managed to pluck that very gap. It's going towards the deep backward point fence. They will get a single, and with that Afghanistan reached 225. Their scorecard now is having a semblance of respectability and moving towards competitiveness. A score of 240, which certainly doesn't look beyond them at this stage, can be a handful, especially if de Kock can be accounted for earlier. That's been deflected off his legs. It's going towards the long leg area, and Omarzai will take a single to take himself to 84. So he's 4 fours away from what will be a very well-deserved 100. And I'm sure everybody in the ground here, apart from a handful of South African supporters, will be rooting and praying for his 100. And if he can get there, Afghanistan can even eye 250.
Gerald Coetzee again. Short, and that's been pulled airily, of course, and then it goes straight into the hands of Midon, who pouches it very safely. And Afghanistan have lost the 9. Mujib departs for 8 off the bowling of Gerald Coetzee, and probably this is only the second catch, apart from the one that David Miller had taken, to be taken by a fielder other than the wicketkeeper. And Mujib reports for 8, but this 8 came off just 5 balls, so it has been a short, sweet cameo. Makram was the catcher. Aiden Makram, a very safe fielder, and like most South Africans, very athletic. And in the 48th over, Afghanistan are 9 down. So it's up to Naveen to just stay put, keep his head down, give company to Azmatullah Omarzai, and help him reach the 3-figure mark, as well as push the Afghanistan score as far as possible. Gerald Coetzee again, and that's been defensively paid back along the track. There can be no run, but Naveenul Haq probably has negotiated 1 ball. He has 1 more ball to negotiate, and after that I'm sure Omarzai will be farming the strike. I know he will have his sights on the coveted 3-figure mark. That would be a huge personal milestone, but that will be secondary. He is a great team man, and his primary objective will be to push the team score along to whatever he can achieve. Coetzee again outside the off stump, moving further away, and Naveen has nothing to do with that one. It goes and nestles and rests into the gloves of wicketkeeper. Quinton de Kock has had a great time behind the stumps today. That's the end of the 48th over. Afghanistan 226 for 9 at this point. Azmatullah Omarzai unbeaten on 84, and Naveenul Haq, the last man standing, yet to open his account. End of another successful over from Gerald Coetzee. 10 overs, 1 made, 44 runs and 4 wickets. So this is the day to remember for him as well. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. जेराल्ड कोएत्जी ने अपना स्पेल पूरा कर लिया 10 ओवरों का, और उनकी सर्वश्रेष्ठ जो गेंदबाजी के अंक हैं, विश्लेषण है, 44 रन देकर 4 विकेट, ये उन्होंने इस मैच में प्राप्त किया है। अब एनगिडी अपना 8वां ओवर, बल्कि चूंकि उनका 1 ओवर आधा ही था तो 7.5 ओवर उन्होंने फेंके थे। अब ये अगली उसकी गेंद फेंकने के लिए आए थे, और ये गेंद विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के पास गई, और हमने देखा कि मुजीबुर रहमान जो थे वो अपनी पिच, अपनी क्रीज में पीछे की तरफ गए थे, बैकफुट पे गए थे, और बहुत ताकत के साथ शॉट खेलने की तैयारी उन्होंने की थी। ऊंची गेंद थी वो, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहते हैं, बहुत हल्का सा उठ करके, लेकिन इस बीच में एक छक्का और लग गया है, और ये छक्का लगा है अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई के बल्ले से। एनगिडी जो हैं वो काफी चिंतित भाव से देख रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार छक्के खाने पड़े हैं उनकी गेंदबाजी पर। ये ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी, लेकिन इस पर आगे बढ़कर ओमरज़ाई ने शॉट खेला, और बिल्कुल शानदार शॉट दर्शकों के बीच जाकर गिरा, और एक दर्शक ने उसको कैच भी किया, और इसके बाद एनगिडी ने उसकी भरपाई करते हुए एक वाइड गेंद और फेंक दी। तो अब इसके बाद स्थिति यह है कि 933 रन हो चुका है। अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई पहुंच चुके हैं 90 रन पर। यह बेहतरीन छक्का था उनका, जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर आया था। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, लेकिन उन्होंने वहां जाकर उस पर आक्रामक शॉट खेला, और इतनी अच्छी टाइमिंग के साथ खेला कि वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर दर्शकों के बीच जाकर गिरा। 90 रन पर हैं वो, उनके पास मौका तो है, देखिए अगर नवीन उनका साथ दे पाए। एक बार फिर ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी,
एनगिडी ने बहुत जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और गेंद पहुंच गई क्विंटन डी कॉक के पास। तो अब इस पारी की 9 गेंदें शेष हैं और 10 रन चाहिए अजमतुल्लाह उमरजई को। अभी वो 100 गेंदों में 90 रन पर पहुंच चुके हैं और स्ट्राइक अभी उन्हीं के पास है। तो हम देखते हैं कि अब जो बची हुई 9 गेंदें हैं, इसमें अजमतुल्लाह उमरजई क्या कमाल दिखा पाते हैं। ये गेंद वाइड होगी। ये बिल्कुल एनगिडी जो हैं वो ऑफ में बाहर से बाहर की होते चले गए, कोई भी हिचक नहीं हुई अंपायर को वाइड देने में। तो ये दूसरी वाइड, यानी कुल मिलाकर अब तक इसमें वो 5 गेंदें फेंक चुके हैं, मगर उसमें से सही गेंदें सिर्फ 3 रही हैं और एक गेंद पे छक्का पड़ा है उसमें। एनगिडी फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये फिर वाइड होगी गेंद, और हुई। तो ये एक कहना चाहिए दक्षिण अफ्रीका के साथ ये बात कही जाती है कि आखिरी के ओवरों में उनकी गेंदबाजी थोड़ी बिखर जाती है। अब आज अफगानिस्तान का कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रहार या बड़ी स्कोर की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अनुशासन नहीं दिखा पा रहे। आखिरी जोड़ी के सामने अगर आप वाइड गेंदों की झड़ी लगा देंगे तो इसे निश्चित रूप से एक अच्छा खेल, समझदारी भरा खेल, सूझबूझ वाला खेल नहीं माना जाएगा। एनगिडी फिर से आए हैं और अब इस बार ये भी वाइड हो सकती थी लगभग, लेकिन काफी आगे आकर उस पर बल्ला लगा ही दिया अजमतुल्लाह ने और दौड़कर 2 रन भी पूरे किए। ये गेंद जो है थर्ड मैन की दिशा में गई, दौड़कर फील्डर को आना पड़ा, तो 92 पे पहुंच गए हैं अजमतुल्लाह उमरजई। और जो अफगानिस्तान के समर्थक यहां हैं वो काफी उत्साह में दिख रहे हैं। उन्हें ये संभावना दिख रही है कि ग्रुप चरण के इस आखिरी मैच में शायद अफगानिस्तान की तरफ से एक और बड़ा शतकीय स्कोर बनने वाला है। बहरहाल अभी ये हुआ नहीं है और इस बार फिर से एक अच्छा शॉट खेला अजमतुल्लाह ने और फील्डर ने कोशिश की रोकने की, लेकिन रोक नहीं सके और 2 रन दौड़कर फिर पूरे हो सके। लगातार ऑफ की ओर गेंदें फेंक रहे हैं एनगिडी और अब वो लगभग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रेडिक्टेबल, यानी पहले से मालूम हो जाता है कि वो क्या करने वाले हैं और अजमतुल्लाह भी उसी हिसाब से तैयारी करके अपने ऑफ की ओर बढ़ करके उन गेंदों को खेल रहे हैं। Azmatullah just a shot away from reaching the coveted milestone. Rajiv, will he do that in style? बिल्कुल, अब अगर छक्का लगा दे वो, क्योंकि 94 पर आ चुके हैं, उनका 92.2 का स्ट्राइक रेट है अभी और ये इस ओवर की आखिरी गेंद है और एक बड़ा शॉट उन्होंने खेला है। हालांकि ये बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन 2 रन फिर भी उनको मिले, बल्कि उन्होंने एक ही रन लिया है और वो इस कारण से लिया है ताकि वो स्ट्राइक अपने पास रख सकें। 2 रन ले सकते थे, इतनी दूर तक गेंद गई थी, लेकिन उन्होंने ये मान करके कि ये खतरा ना लिया जाए कि आखिरी ओवर की शुरुआत नवीन उल हक को खेलनी पड़े और बिल्कुल वो कच्चे बल्लेबाज हैं उनके मुकाबले बहुत, और फिर उनके पास शतक तक पहुंचने का अवसर भी है। तो बिल्कुल उचित है ये कि उन्होंने 1 रन लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखी है। उनका इसके पहले सबसे बड़ा स्कोर 73 था इस विश्व कप में और वो उनके करियर का भी बड़ा स्कोर था। उसके पहले 62 रन थे, वो भी इसी विश्व कप में बने थे, लेकिन अब वो 96 पर अब तक पहुंच चुके हैं, सबसे आगे पहुंच चुके हैं। देखना यह है कि 96 के स्कोर को वो 3 अंकों में बदल पाते हैं या नहीं। रबाड़ा अपना आखिरी ओवर करने के लिए आ चुके हैं, 37 रन दिए हैं उन्होंने, विकेट कोई नहीं मिला है और ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इसका लाभ उठा नहीं सके, बल्कि
लगता है थोड़ा सा हमारे समझने में कुछ, क्योंकि नवीन जो हैं वो स्ट्राइक पर थे और अब स्ट्राइक पर अजमतुल्ला आए हैं। खेल के रोमांच के क्षणों में कभी कभी ऐसी समझबूझ में, और बहुत अच्छा शॉट लगाया है ये अजमतुल्ला ने, लेकिन उनको एक ही रन से संतोष करना पड़ा और अब स्ट्राइक चली गई है नवीन के पास। तो अब मुद्दा यह है कि गेंदें तो अभी 4 बाकी हैं, अजमतुल्ला को 3 रन चाहिए शतक पूरा करने के लिए, पर अब उनको स्ट्राइक भी चाहिए। तो नवीन अगर ये कर सकें कि 1 रन लेके स्ट्राइक उन्हें दे सकें तो ये उनका योगदान होगा अजमतुल्ला की शतक को पूरा कराने में, और ये उन्होंने कर दिया। ये तो उनके लेग स्टंप पर आई, उसको उन्होंने धीरे से खेल दिया मिड विकेट की तरफ और 1 रन ले लिया। तो अब 3 गेंदें बची हैं और 3 रन अजमतुल्ला को चाहिए। अगर वो चौका या छक्का लगाते हैं तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी और शायद वो कोशिश भी इसकी करेंगे। बहरहाल कोशिश करना आपके हाथ में होता है। गेंद कैसी आती है, अफगानिस्तान के जो समर्थक हैं बहुत उत्साहित दिख रहे हैं स्वाभाविक रूप से, और ये नहीं हो सका इस बार। अच्छी गेंद थी और अजमतुल्ला ने इसको सुरक्षात्मक रूप से खेला। गेंदबाज के पास वापस गेंद गई और रन नहीं बन सका। तो अब 2 गेंदें बची हैं पारी में और 3 रन अजमतुल्ला को शतक के लिए चाहिए। यानी अब उनको बाउंड्री लगाने का प्रयास ही करना होगा, क्योंकि अगर वो 1 रन ले पाते हैं या 2 रन ले पाते हैं तो बात शायद न बन पाए। 2 रन से फिर भी बन सकती है और ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक बाउंसर थी। इशारा अंपायर ने किया कि 1 ओवर में आप 1 फेंक सकते हैं। उनके कंधे के ऊपर से गेंद गई थी, पर बहरहाल कुल मिलाकर हुआ यह है कि रन नहीं बन सका इस पर। वैसे ये वाइड का आभास भी दे रही थी, लेकिन अंपायर ने इसको एक ठीक ठाक गेंद माना और आखिरी गेंद पर शॉट मारा अजमतुल्ला ने, लेकिन सीधा वो गया रबाड़ा के पास। रबाड़ा ने गेंद को फील्ड किया। नवीन उल हक दौड़ चुके थे तो रबाड़ा आराम से वापस लौटे और उन्होंने नवीन उल हक को रन आउट कर दिया। इस तरह से आखिरी गेंद पर पारी समाप्त हो गई 244 रन पर, और अजमतुल्ला को 97 रन के निजी स्कोर पर ही इस बार संतोष करना पड़ेगा और उनके शतक के लिए उनके प्रशासकों को अब उनके भविष्य की किसी पारी का इंतजार करना होगा। तो बहरहाल अफगानिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था और उनका जो टॉप ऑर्डर है पावर प्ले में बहुत उसका लाभ नहीं उठा सका। शुरुआतें मिली सभी अच्छे खिलाड़ियों को जो उनके जाने माने खिलाड़ी हैं। कप्तान को छोड़कर सबको शुरुआत मिली, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा सके उसे, और उसके बाद अंततः 244 के स्कोर पर आखिरी गेंद पर रनआउट के साथ ही अफगानिस्तान की पारी सिमट गई। अब हम इंतजार करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का जवाब किस तरह का होता है, लेकिन आपको आकाशवाणी के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अभी जो ये 2 पारियों के बीच का अंतराल है इसमें कौन बनेगा विजेता, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसमें विशेषज्ञ अपना विश्लेषण देंगे, अपनी राय देंगे। आप भी शायद उनसे बात कर सकेंगे और इस तरह से इस खेल के साथ जो आपका ये उत्साहजनक जुड़ाव है ये नए नए रंगों में बना रहेगा। तो सुनेंगे आप कार्यक्रम कौन बनेगा विजेता, और हम लौट कर आएंगे दक्षिण अफ्रीका की पारी के आंखों देखा हाल लेकर जब वो शुरू होगी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder.
और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। कौन बनेगा विजेता? साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान। जी हां, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को दिया है 245 रनों का लक्ष्य। कौन बनेगा विजेता? इसी सवाल का अनुमान लगाने के लिए हम कार्यक्रम कौन बनेगा विजेता लेकर हाजिर हैं। मैं हूं कनिष्का, मेरे साथ हैं कर्नल भूपराज, फॉर्मर क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, आपका बहुत बहुत खिलाड़ी, Thank you very much. स्वागत है। थैंक यू। और राकेश राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो राकेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआत हुई ऐसा लगा कि 150 में ही पूरी टीम निपट जाएगी, फिर उन्होंने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने, और फिर से अंत में आके ऐसा लगा कि जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसे कहीं खो दिया। तो कुछ ऐसा रहा कि कभी इधर कभी उधर पलड़ा, कभी लग रहा था बहुत स्ट्रांग है, कभी नहीं। देखिए, जो स्टार्ट था वो अफगानिस्तान के लिए ठीक था। पहले 8 ओवर में उन्होंने 40 रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद महाराज की बॉलिंग आई और साथ में कुटजिए, और दोनों ने कंट्रोल किया पूरी गेम को। एंड एट वन टाइम 116 पे 6 आउट हो गए थे अफगानिस्तान के, और उस टाइम लग रहा था कि अगले 5-7 ओवर में टीम निपट जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या शानदार बैटिंग करी अफगानिस्तान टीम ने, और स्कोर अब वो लेके के चले गए हैं 244। 244 इज a good score. Momentum is with Afghanistan. Let's see what happens now. राकेश, 244 का स्कोर है, 245 बनाने, 1 रन ज्यादा बनाना है साउथ अफ्रीका को। क्या आसान होने वाला है, मुश्किल? देखें आप, स्पिनर्स भी हैं उनके पास, अफगानिस्तान के पास, कर सकते हैं? मुश्किल है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए? देखिए, जस्ट डिपेंड करता है कि वो स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था पहले कि स्पिन विल बी अ फैक्टर अगर अफगानिस्तान को जीतना है। बैटिंग अब अपनी जगह है उनकी, इसीलिए मैंने उनकी बैटिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि अगर उनको मैच जीतना है तो जितने भी रन लगे हैं बोर्ड पे, उनके स्पिनर्स को रोकना है। और 40 ओवर का स्पिन है, ये बड़ा अनयूजुअल होता है। नॉर्मली मैं 40 ओवर में इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि हालांकि उनके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं, तो नवीन भी हैं, अजमत भी हैं, और अजमत का दिन है, मतलब उनका जो 100 है वो उनके हाथ से निकल गया। बना सकते थे, मुझे लगा कि क्योंकि लास्ट में अगर आप देखें तो 48 ओवर में 2 रन आए हैं और 50वें ओवर में 3 रन आए हैं, और आप 97 पे नॉट आउट जा रहे हैं, तो बन सकता था, थोड़ा चांस लेके खेलना चाहिए था। लेकिन ये अपनी जगह। आपने पूछा कि चेस का, मुझे लग रहा है कि अभी ये मैच 50-50 है। मेरा दिल कह रहा है कि साउथ अफ्रीका को मुश्किल हो सकती है, दिमाग कह रहा है कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। तो ये थोड़ा सा दिल और दिमाग में एक लड़ाई चल रही है। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान ने जिस स्थिति में वो थे और जहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी फाइट की है उन्होंने। जी, और आपको हम बता दें कि आप भी कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बनेगा विजेता, और यहाँ पर कोई सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, कर्नल भूपराज से और राकेश राव से। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको हमारे फ़ोन नंबर्स हैं जो वो डायल करने हैं, और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2342-1083 और 2342-1085। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइटिंग टोटल है, हो सकता है कि अफगानिस्तान जीत जाए, हो सकता है साउथ अफ्रीका, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए बात करते हैं साउथ अफ्रीका के जो क्विंटन डिकॉक हैं, जो उनके विकेट कीपर हैं। आज उन्होंने 6 जो हैं विकेट के पीछे खड़े हुए कैचेस पकड़े। इब्राहिम जदरान का, हसमतुल्ला शहीदी, इकरम अलीकील, मोहम्मद नबी, रशीद खान, नूर अहमद, इन सब के कैचेस पकड़े। एक्चुअली आज अफगानिस्तान की शॉर्ट पिच बॉलिंग के अगेंस्ट जो टेक्निक है वो एक्सपोज हो गई जी। ज़्यादातर ये जो कैच पकड़े हैं बिहाइंड द विकेट्स, दे वर ऑन शॉर्ट पिच बॉलिंग, एंड उनकी टेक्निक एक्सपोज होगी। ऑफ कोर्स
क्विंटन डिकॉक ने बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग की है, उसके लिए तो मुबारकबाद उनको. बट एट द सेम टाइम इफेक्टिव शॉर्ट पिच बॉलिंग ऑन दिस काइंड ऑफ ए स्लो विकेट हैज रिजल्टेड इन सो मेनी विकेट्स. जी बिल्कुल. और राकेश, आपसे कुछ बात हो रही थी कि अगर 7वीं कैच भी ले लेते डिकॉक जी तो विश्व रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ये इंसिडेंट हो चुके हैं 10 बार. ओडीआई में हमने देखा है कि किसी विकेट कीपर ने 6 कैचेस लिए हैं. उसमें एडम गिलक्रिस्ट एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये 10 में से 3 बार उन्होंने किया है. अरे वाह. तो आज उनका रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया, क्योंकि जब इन्होंने अपना 6वां कैच लिया था तब 8 खिलाड़ी आउट हुए थे. तो लास्ट के 2 विकेट तब भी थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और उनका वो रिकॉर्ड अब बस ये हो गया कि ये 11वां ऐसा अवसर है जबकि ओडीआई में हमने देखा कि एक विकेट कीपर ने 6 कैच पकड़े. जी कर्नल, आपको ऐसा कहीं लगता है कि जैसे कि बात कर रहे थे आप लोग अजमतुल्ला उमरज़ई की कि वो अपना सैकड़ा पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ 3 रन से रह गए, और वहीं पर और भी जो खिलाड़ी हैं जिन्हें स्टार्ट मिला मगर उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस स्टार्ट को, और उसी के साथ साथ लास्ट में रन आउट हुए. बहुत ही अजीब तरह से वियर्ड फॉर्म ऑफ गेटिंग आउट देयर, कि थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखता है अफगानिस्तान का कभी कभी इस तरह. हाँ, उनका एक्चुअली इनएक्सपीरियंस तो शो कर रहा था. कुछ लोगों को स्टार्ट मिला, फिर उन्होंने थोड़ा रैश शॉट खेले. रैश शॉट इसलिए खेले, मे बी वो चाहते थे कि बड़ा लंबा स्कोर करें, फास्ट स्कोर करें, तो उसमें विकेट गिर गई. प्लस आपको देखना पड़ेगा कि महाराज ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी. उसकी बॉल स्पिन हो रही थी, और कुडजे तो जोर लगा के खेलते ही हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं, 140 के ऊपर करते हैं, तो उसके कारण ये थोड़ी ब्रेक लग गई. अगर थोड़ा सा भी ठीक से शॉट खेलते तो ये और लंबा स्कोर कर सकते थे. जी, और इसी के साथ हमारे साथ 2 कॉलर्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं. आइए उनसे बात करते हैं. हेलो जी, कनिष्का जी नमस्कार. जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए. मनु रामायणी बात कर रहा था. कनिष्का जी, दोनों एक्सपर्ट को और आपको धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ सादर प्रणाम. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. कैसी हैं कनिष्का जी? बिल्कुल, आपका कॉल आ गया मनु जी. बहुत ठीक है, आपका बहुत स्वागत है. आप सवाल पूछिए अपना. सवाल पूछना चाहता हूं आदरणीय राकेश जी से. एक सवाल, पहला सवाल, क्या क्विंटन डिकॉक फिर से शतक मारेंगे? 6 कैच तो ले ही लिए. और क्या राशिद खान जाते जाते कुछ कमाल दिखा पाएंगे? राकेश जी, मेरा नमस्कार पहले स्वीकार करिए आप. नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी. एक और कॉलर हैं, उनके सवाल को भी शामिल करते हैं. हेलो जी नमस्कार, हम आपको सुन सकते हैं. आप अपना परिचय दीजिए, अपना सवाल पूछिए. जी, आवाज जो है बहुत ज्यादा साफ नहीं आ रही है आपकी. जी, कुछ दिक्कत लग रही है. मैं सुन पाई कि महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, और जी उनका अभी भी आप लाइन पर हैं, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल. आप रेडियो सेट का वॉल्यूम कम करें और बोलें. हेलो जी, और यहाँ पे उनसे संपर्क शायद टूट गया है. राकेश, उन्होंने आपसे, मनु जी जो थे उन्होंने आपसे 2 सवाल पूछे थे. ही आस्क्ड यू टू प्रेडिक्ट. जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पे एज एन लाइक एनालिस्ट बैठे हैं. हम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते हैं. तो डिकॉक 100 मारेंगे या राशिद खान कुछ ऐसा अलग सा कुछ जाते जाते कुछ कमाल कर देंगे, ये कहना मुश्किल है. लेकिन हाँ, 2 बड़े कैपेबल खिलाड़ी हैं, दोनों के पास ये अवसर है कि वो अपने इस टूर्नामेंट के इस मैच में, लीग का जो आखिरी खेल है, उसमें कुछ अपना इंप्रेशन छोड़ के जाएं. रन्स इतने बोर्ड पे ज़रूर हैं कि डिकॉक एक और 100 अपना मार सकते हैं. लेकिन राशिद खान एक ऐसे अटैक का हिस्सा हैं जो डिकॉक को ये करने से रोक सकती है, बिल्कुल, और रोकने का उनका पूरा प्रयास होगा. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज पे मोमेंटम जो है वो अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया है. जब हम देखें 116 पे 6, वहाँ की हालत से जैसे जैसे अफगानिस्तान ने अपनी स्थिति में सुधार को मतलब वो लोग लाए हैं और जो देख रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, मिड इनिंग्स ब्रेक जब होता है, जैसे अभी जैसे है, इसमें साइकोलॉजिकल खेल बहुत होता है कि आपने कौन सा मोमेंटम कैसे छोड़ा. मान लीजिए कि आप पहले 4 विकेट जो हैं उन्होंने उनके मान लीजिए 180 रन जोड़ देते,
और आखिरी 6 विकेट पे ये 244 पे रोक लेते तो साउथ अफ्रीका ज़्यादा खुश होती, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने शुरुआत अच्छी की, लेकिन ये जो आखिरी में जो रन जो जोड़े गए हैं, 7वें विकेट के लिए 44 रन, 8वें के लिए 44, 9वें के लिए 22 और आखिरी विकेट के लिए 18 रन, ये जो हैं ये साउथ अफ्रीका को इस वक्त चुभने वाले हैं डेफिनेटली। जी। तो ये एक बात होती है। अब देखें कि ये स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं, जैसे मैंने कहा। जी मनु जी, आपको अपना सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा, और इसी के साथ कुछ और सवाल हैं जो हमारे श्रोता हमसे पूछना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार, मैं मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ। जी नमस्कार मुकेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को धनतेरस और दिवाली की। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान आज बहुत कम रन बनाई और विकेट भी ज्यादा खो गई, ऐसा क्यों हो गया? जी ऐसा क्यों हो गया, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी बिहार से बोल रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरा एक सवाल ये है कि प्रेडिक्शन की आज साउथ अफ्रीका जीत रही है, और ये दूसरा सवाल ये है कि इंग्लैंड इतनी बुरी तरह से आ रही है, तो क्या उसमें जेसन रॉय और जोफ्रा आर्चर उन्हें काफी कमी चली है क्या? जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के लिए प्रेम इतना है कि जो टीम ना भी खेल रही हो उसके लिए भी सवाल क्रिकेट प्रेमी पूछ लेते हैं। खैर वापस आएंगे आज के मैच पे, जो कि है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाए। 245 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका के सामने रखा है। कर्नल जेराल्ड की बात करेंगे, जेराल्ड कोटजिए, जो कि एक नई फाइंड हैं। अभी इसी साल मार्च में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनका जो है डेब्यू हुआ, ओडीआई डेब्यू। और इस विश्व कप की अगर बात करें तो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 3 विकेट लिए, फिर ऐसे ही नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 1, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी कामयाब रहे, 3 विकेट लिए। आज भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। एक यंग खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। देखिए उनका परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा रहा है। आज के मैच से पहले वो 14 विकेट ले चुके थे, और मुझे बड़ा ही हैरानी हुई थी कि उनको इंडिया के मैच में क्यों ड्रॉप कर दिया था। ये एक ऐसे बॉलर हैं जो 140 की स्पीड से ज़्यादा बॉल करते हैं, पूरा जान लगा के बॉलिंग करते हैं और थोड़ी शॉर्ट पिच बॉलिंग करते हैं। बैट्समैन को डरा के आउट करने की इनकी क्षमता है, एंड आज उन्होंने वही दिखाया। 4 विकेट लेके पूरे जोश लगा के बॉलिंग करी, और इस वर्ल्ड कप में अब उनकी 18 विकेट हो गई हैं। ही इज़ ए वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। जी राकेश, अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें, इसके बाद उनका जो मैच है वो सेमीफाइनल, और हो सकता है उसके बाद फाइनल हो, तो यहाँ से उनके लिए एक अच्छा टेस्ट है। 245 का स्कोर जो है वो हालांकि वो नहीं चाह रहे होंगे बने, पर बन गया है। अब उन्हें चेस करना है जो उनकी कमजोरी, वीकनेस मानी जाती है। कप्तान टेम्बा बवूमा ने भी यही कहा जब टॉस के दौरान कि दिस इज आवर वीकनेस, एंड ही सेड दैट ही रिकॉग्नाइज दैट इट्स देयर वीकनेस। So it's a good opportunity for them to probably overcome this weakness and prove to the world that they can do it. Yeah, South Africa, see, it is looking to win this game, number one. And when you win a game while chasing, because that is one area where you haven't looked very convincing right through your World Cup campaign. If you just go back, they've just won just once they beat Pakistan in just about, with that last wicket pair. And against India, they couldn't put anything on the board. Against, like Netherlands, they lost the match while chasing. So it looks gloomy, but this is one great opportunity to take that victory with them by chasing and winning. And when we talk about South Africa, we normally talk about a team which chokes when it chases. Most of the time it chokes when it chases. Now here, I just want to bring in a little element here, that this impression has been created obviously because the South Africans have given you ample reasons all this while, right from 1992. But I want to just bring in another element here, that a team like New Zealand, which has played 1 quarterfinals, 6 semi-finals, and the last 2 World Cup finals, it's back in the semi-finals almost. Now that team has done all this without winning the World Cup. Right. So which team chokes? Imagine 1 quarterfinals, 6 semi-finals, and 2 successive finals, and they are 1 victory away
from being in the third successive finals. Nobody labels them as chokers. Yes. Here is a team which somehow that label has stuck. So let's just remind ourselves that it is not that South Africans, the moment you say, oh, South African is going to chase 245, they might choke. Yeah. This label has stuck, but the facts say otherwise. You know, they have also won, and there are a lot of teams that may not be able to get 245 on this wicket. But because it is South Africa, tomorrow's newspaper, God forbid if they lose the match for whatever reason, again they'll say, look, while chasing they choke. So this has become the kind of a refrain from the media and the commentators and the analysts. Right, so I just want to, just draw a line and just remind ourselves, let's not do that. Because, of course, South Africans have given us ample reasons to stick with this. But we can look at other teams also and give this team, some kind of a solace that, look, you are not the only one. There are a lot of teams which need not necessarily win a knockout game. And especially while chasing. Unlucky and unfortunate. These are the terms which are used when you talk about New Zealand, especially after 2019 World Cup. Coming back to one of the bowlers of South Africa, Lungi Ngidi. उनको हमने देखा उन्होंने कुछ ओवर डाले और उसके बाद ही there was some minor or major injury that we do not know right now, and he went back to rest probably, and then he came back to the ground and he bowled few more overs. तो आज जबकि वो South Africa has already qualified करना, so was it necessary to bring Ngidi back? He could have been rested. They would not want a situation where he is not available for their most important match, semi-final. देखिए मेरे ख्याल से तो उनको रिस्क इसलिए लिया है उनको खिलाने के लिए दोबारा, बिकॉज पॉसिबली दे डिड नॉट वांट ए बिग स्कोर टू चेस. अब और कोई बॉलर उनके पास था नहीं, तो दैट इज व्हाई निगीडी केम बैक एंड बोल्ड हिज ओवर्स, एंड उसने अपने 8.3 ओवर्स में 69 रन दिए. महंगे साबित हुए हैं. एंड जो इनकी उम्मीद थी कि वो आके विकेट लेंगे, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गई है. एक मेरी पॉइंट और है चोकर्स के बारे में और साउथ अफ्रीका. एक्चुअली यू टर्म कॉल ए टीम चोकर्स व्हेन दे कम टू प्रेशर व्हाइल चेसिंग. तो इनके साथ कई बार हुआ है कि अगर इनकी शुरू में 1-2 विकेट जल्दी गिर जाएं सेकंड इनिंग में, तो तब ये कोलैप्स हो जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू विथस्टैंड दैट काइंड ऑफ प्रेशर. तो आज ये बड़ा ही देखने वाला दिन है कि ये किस प्रकार से ये जो स्पिनर्स को खेलते हैं. Their team depends a lot on De Kock, and De Kock has had scored 4 centuries, that too batting first. If his wicket goes early today, and Vanderdusen भी जल्दी आउट हो गए, तो आज ये बहुत प्रॉब्लम आने वाली है 245 बनाने की. जी, और इसी के साथ फिर से हमारे साथ कुछ श्रोता हैं जो जुड़ चुके हैं और अपने सवाल पूछना चाहते हैं. आइए उन श्रोताओं से बात करते हैं. हेलो. जी नमस्कार. नमस्कार मैम. जी मैं उत्तर प्रदेश जिला अम्बेडकर नगर आनंदपुर सादान बेग बात कर रहा हूँ मैं. जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में. आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. जी मैम, मेरा सवाल ईश्वर से यही है कि साउथ अफ्रीका की टीम जैसे अब की 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है जी, तो उनका मैच ऑस्ट्रेलिया टीम से है. तो क्या जिस तरीके से उनकी गेंदबाज इस बार गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या साउथ अफ्रीका को यहाँ से फाइनल में पहुंचने की खुशबू आने लगी होगी, या उनके गेंदबाज क्या बैट्समैन परेशान में आ जाते सेमीफाइनल में, जो 4 बार सेमीफाइनल में पहुंच के अंत में हार गए? क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि वो फाइनल में पहुंच सकते हैं? क्या उनके अंदर कमी रह जाती है, परेशान में आ जाते हैं, बड़ा मैच है? क्या जानना चाहेंगे? बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे. एक और कॉलर है, उनका सवाल शामिल करते हैं. हेलो मैम, नमस्ते. जी नमस्कार. अपना परिचय दीजिए. मैं गुजरात के कच्छ जिले के तालुके नखत्राणे गांव तल से बोल रहा हूँ, जते हेमंत साले. जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में. क्या सवाल है आपका? मेरा राकेश सर के लिए सवाल है. जी. जैसा कि मैम 2014 से लेकर 2023 तक T20 वर्ल्ड कप हो, विश्व वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, इन सभी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल तक तो टीम इंडिया पहुंची है. जी. मगर वहाँ पे जाके क्वालिफाई कर जाती है, तो 8 बार कुल सेमीफाइनल या फाइनल में हारी है. तो इस वक्त टीम इंडिया खेल तो बहुत बढ़िया रही है. अगर कहीं ना वो खराब दिन आ गया
तो उसके लिए टीम इंडिया की क्या तैयारी है और क्या तैयारी होनी चाहिए? कप्तान हर बार तो ये शुभ बोलिए। अभी आप राकेश कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात कर रहे थे इन्होंने आपको एक और नाम दे दिया, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे और देखिए प्रेम देखिए क्रिकेट के लिए हमारे श्रोताओं का कि वो एक और नाम दे दिया और आंकड़े दे दिया। जी देखिए, जिस टीम का नाम हम नहीं सुनना चाहते। नहीं देखिए, होता क्या है कि नॉकआउट मैच ऐसा है कि आपका एक दिन खराब हो जाए जी, तो ये जो 8 विन या 9 विन जो हो सकती हैं, क्योंकि हम शायद 9 जीत के बाद पहुंचेंगे सेमीफाइनल में, ये दो अलग अलग चीज़ें। हम ये कहें कि साहब हम लीग में, देखिए हमने 2015 वर्ल्ड कप में भी वही किया, लीग बहुत अच्छा खेले हम, 6 के 6 मैच हम जीते, 7 टीम की लीग थी, 14 टीम खेल रही थी। फिर अगर हम लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम का जो वर्ल्ड कप था वहाँ भी हमने लीग में अच्छा किया, रोहित शर्मा ने 100 पे 100 मारे, बहुत हम अच्छी टीम लग रहे थे। एक ख़राब दिन, वो चाहे तो इंडिया का हो बाहर का हो, किसी का भी हो सकता है, वहाँ पे आप क्या कहेंगे कि क्या हम लोग फिर हम वही बात है, हमारी वो हिंदुस्तानी सोच पे आते हैं कि पहले ना हमको एक मैच हार जाना चाहिए था, जितना भी बैड लक था वो एक ही दिन खत्म हो जाता। ये बात होती है। ये सोच का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपको सीखने के लिए हार के नहीं सीखना, आप जीत के भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो ये टीम मैनेजमेंट है या जो लोग टीम के साथ जुड़े हुए हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है, बाकी लोग भी हैं, ये टीम को वहीं रखते हैं चाहे आप हारें या जीतें। इसीलिए आपका सपोर्ट स्टाफ चलता है इतना लंबा चौड़ा कि आपको ये बताया जाए कि देखिए ये कुछ भी हो सकता है, आप जीते ज़रूर हैं मगर अभी खेलने के में जो आपको सुधार लाना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, कि इसीलिए आपको बताया जाता है कि आपने इतने रन बनाए लेकिन जैसे आप आउट हुए ये गलत तरीका है आउट होने का। तो ये सब तरीके से आपको वहीं रखा जाता है, इसके लिए आपको मैच हारने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि एक टफ डे है, क्योंकि आप हर टाइप के चैलेंजेस से आप निकले हैं। 2 रन बोर्ड पे 3 विकेट आपके आउट हो गए थे, आप फंस रहे थे। पाकिस्तान 155 फॉर 2 था, आपको लग रहा था क्या होगा पता नहीं, 36 रन पे आपको 8 विकेट आपने निकाल दिए उनकी। ये सब चीज़ें आपने खुद की हैं, तो ये सब आपको याद दिलाया जाता है कि देखिए आपके ऊपर जब प्रेशर आता है आपने परफॉर्म किया है वहाँ पे। जब आपके पास सिर्फ 229 बोर्ड पे लगे हैं आपने, आप वो मैच भी 100 रन से जीतते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक इंग्लैंड जैसी टीम को 129 पे रोक रहे हैं आप, ये कमाल है। तो ये सब चीज़ें आपको एक नॉकआउट मैच से पहले आपको बताया जाता है कि ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं। फिर जब आप मैच पे उतरते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ, अब मुझे वो किया जाए कि जो अब हमको अभी तक मौका नहीं मिला था, अब ये मैच को हम और ज़्यादा अच्छी तरह खेल के जीतें। क्वालिटी ऑफ गेम अच्छा होगा, रिजल्ट तो सबको सेम चाहिए, जीतना ही है सबको। तो सिर्फ आपका जो एग्जीक्यूशन है आप वहाँ की बात करते हैं। तो ये कहना कि इंडिया क्यों नहीं जीत रही है, उसका नतीजा सिर्फ यही है, मतलब उसका जो एक रीज़न ये है कि हम लोग उस दिन अपने जो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। प्रेशर से नहीं हारते हैं हम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन दैट डे। और वो दिन आपका पहले मैच में भी आ सकता था, जब हमारे 2 रन पे 3 विकेट आउट हो गए थे, वो मैच भी हम हार सकते थे। लेकिन अब हम हारना कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो हमको जीतना ही है, क्योंकि हम तो इंडिया है, कबूल करना नहीं, अब तो हमको खेलना, वही मैं कह रहा हूँ, अब तो हम नहीं करेंगे कबूल। ये हमारी सोच है, एक आम आदमी की सोच की बात कर रहा हूँ। जी, अगर मैं खिलाड़ी की मानसिकता की बात करूँ, आप जब खेलते थे तो क्या ऐसा होता था कि आप जीतते जाएं, या फिर खिलाड़ियों में भी ऐसा सुपरस्टिशन होता है चलो एक मैच हार जाते हैं लीग में? नहीं, हारना तो कोई नहीं चाहता, बट आई जस्ट वांट टू ऐड, आउट ऑफ द 8 मैचेस दैट वी हैव प्लेड एंड वन, जी 7 मैच हम बड़े आसानी से जीत गए। एक मैच न्यूजीलैंड के साथ हमें बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। अगर आपने देखा होगा, कोहली स्कोर्ड अबाउट 90 समथिंग जी, एंड में आके जडेजा ने 36 ऑड रन बनाए थे और हमें लाइन क्रॉस करा दी थी इन दी 47th ओवर। सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मैच दैट वी हैव वन। अब हमारा सेमीफाइनल में उनके साथ दोबारा मैच होगा। वी कैनॉट टेक दिस टीम लाइटली, हमें बहुत अच्छी तरह से खेलना होगा। जी, चलिए हो गई भारत की बात। चलते चलते फिर से बात करते हैं साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम की। हमें पता है आप दोनों ही नाम ले चुके हैं क्विंटन डिकॉक का कि 245 का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उनकी भूमिका अहम है। पर दोनों को अब एक नाम दोनों को लेना होगा कि जो अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं जिनकी भूमिका अहम रहेगी डिफेंड करने के लिए। देखिए, मैं तो स्पिनर्स की बात करूंगा, हालांकि अजमत भी हैं, नवीन भी हैं, क्योंकि जैसे केशव ने इस विकेट पे अभी बॉलिंग की है, इसके बाद तो मुझे कोई डाउट नहीं रह जाता है कि सारे के चारों स्पिनर्स तो वेट कर रहे हैं कि बॉल हमारे हाथ तो में सब स्पिनर्स आपकी तरफ करके देखें। देखिए, रशीद तो अच्छी बॉलिंग करेगा ही, बट आई एम लुकिंग टुवर्ड्स नूर अहमद, वो जो मिस्ट्री स्पिनर है जी, उसकी तरफ मैं देख रहा हूँ।
I think he'll do well today. चलिए, बल्ले से भी उन्होंने 26 जो रन है वो आज मारे हैं। हो सकता है गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करें। फिलहाल कौन बनेगा विजेता में हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कर्नल भूपराज और राकेश राव आप दोनों का कि आप प्रोग्राम में आए, हमसे बातें की और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। और साथ ही धन्यवाद बहुत बहुत उन श्रोताओं का जो हमसे जुड़े हुए हैं। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के मीटरों पर। आप बॉल बाय बॉल कमेंट्री आंखों देखा हाल मैच का सुन सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद। कौन बनेगा विजेता? और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। Good evening and a warm welcome to the Narendra Modi Stadium at Ahmedabad, where Afghanistan is squaring off against South Africa. This is R. Giridhan, the English commentator, along with his colleague in Hindi, Rajiv Shukla, welcoming you all for this evening's reply of South Africa. To those who tuned in late, Afghanistan won the toss and decided to bat, powered by a magnificent unbeaten 97 from Azmatullah Omarzai. Afghanistan posted 244. They were bowled out of the last ball of their allotted 50 overs. The most successful South African bowler was Gerald Coetzee with 4 for 44. Keshav Maharaj bowled brilliantly with figures of 2 for 25. And for Afghanistan, the next highest scorer was Noor Ahmed with 26. And Gurbaz had contributed with 25. South Africa now chase 245. And from the look of it, it looked to us that there certainly is some turn, there is some carry, and if the Afghanistan pace bowlers, especially Naveen-ul Haq, can make early inroads into the South African top order, the spinners of Afghanistan, who can pack quite a punch, will make things very difficult for South Africa, and we might have a match on our hands. At this point, I would like to ask Rajiv about his views and carry on from there. बिल्कुल जो आपने कहा कि अफगानिस्तान के पास वैसे मौका तो था इससे और बेहतर करने का, क्योंकि जैसी हमने चर्चा पारी की समाप्ति के पहले भी की थी, कई खिलाड़ियों के पास शुरुआत अच्छी हुई थी और उनके जो सलामी बल्लेबाज हैं वहां से भी अगर देखें, उसके बाद रहमत शाह, तो कम से कम शुरू के जो तीनों बल्लेबाज थे उन तीनों की शुरुआत अच्छी हुई थी और उम्मीद ऐसी बनी थी। उसमें इब्राहिम जदरान तो पिछले मैच में शतक बनाकर ही आए, उसके बाद उनके जो कप्तान हैं वो जरूर बहुत सस्ते में गए। बाद के दौर में ये है कि नूर अहमद की मैं खास तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल अभी उनकी कम उम्र है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिम्मत के साथ खेले, वो बहुत परिपक्वता शायद अभी ना हो लेकिन हिम्मत के साथ खेले। और ये तय बात है कि अज़मतुल्लाह उमरज़ई की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि अगर उनकी वो पारी न होती, जो कि वो नाबाद रहे, ये भी हमें ध्यान देना होगा, और 97 रन पर वो रुक गए क्योंकि 3 रन उनके बाकी बचे हुए थे। तो खैर, अब वो जो कुछ था वो हो चुका। अब हमारे सामने दक्षिण अफ्रीका की पारी है और वो पारी शुरू हो रही है। तो अब गिरिधरन, उसके बारे में आप बताएं कि Quinton de Kock, who has had a magnificent tournament so far. He had a great
time behind the stumps earlier in the day. He's on strike now. And as far as Afghanistan is concerned, they have started with Mujib. Quinton de Kock drives a well-flighted delivery. He's using his feet very well, gets it through the gap, through the meat of the bat, square on the offside to the backward point fence for 4. Quinton de Kock starting in his usual blazing fashion. He's very quick on his feet. Despite having kept wickets for 50 overs, his feet are moving very fluidly. He just waded into that one and played it all along the ground. Repeats the shot, but this time it goes a little squarer and it goes towards gully, where it is fielded by Rashid, and there can be no run. Afghanistan have a very potent spin attack. Many believe that they have the best spin attack in the competition, and they are backing their stronger suit. Here comes Mujib again. And this time giving it a little more air, but according it all the respect that it deserves is Quinton de Kock. Stretches fully forward and plays it quietly towards mid-off, and there can be no run. There is a deep gully, a leg slip that has been eased onto the onside in the gap just to the left of Widish mid-on, and before long on can come and do the mopping up work, de Kock crosses over for a single. Let's see if the field would be same for the right-handed Bavuma. No, the field is going to change now. They're going to have a slip for the right-handed Bavuma. And backward point is coming towards point. So a slip, a gully, a point, a short extra cover, and a mid-off on the offside. On the onside we have a short fine leg, a widish mid-on, a long on, and a deep backward square leg at the fence. Both the men at the fence are on the onside. One at the widish mid-on fence, just at the cow corner, and other at deep backward square leg. Bavuma plays it quietly on the offside. Bavuma has been struggling for runs in this tournament, and that's why they want to pile some extra pressure on that one. But Bavuma, this time, just playing it very quietly, no heroics from him. In the Mujib's over, an over in which he conceded 5 runs, and all the 5 runs to the credit of Quinton de Kock. क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। This stadium looked very beautiful during the daytime when it was bathed in sunlight, but at the moment the sparkling floodlights have made it an even more beautiful sight. I can tell you this is one of the best sights to play cricket. And now the boundary line has got a cushion, and on that cushion the person of the bowler's name comes and it flashes. So at the moment Naveen-ul Haq is going to bowl, so his name is flashing on the boundary cushion, and it's a very good spectacle for everyone to see. And Naveen-ul Haq will be bowling to de Kock. A slip, a gully, a backward point, a cover point, an extra cover, and a mid-off on the offside. Naveen-ul Haq running in, right arm, round the wicket, but somewhere missed his run-up, just stops in front of the umpire and is trudging back slowly to the top of his bowling mark. On the outside we have a mid-on. So it's a packed offside field for Quinton de Kock. So what they back is, they back Naveen-ul Haq to bowl just on or around the off stump and challenge de Kock to flick it on the onside against the tide, maybe take those risks. So I think what they reckon is, if he's going to play against the tide, let him do that. Naveen-ul Haq, a skinny bowler with a skinny action, bowls that one just outside the off stump, played very quietly by de Kock, fielded by short cover, and there can be no run. Aggressive clinching field by Afghanistan. A slip and a short gully. Naveen-ul Haq runs away from us, from the media end,
But this time strays on to the legs of Decock, and Decock has worked that away down to deep backward square leg, and they will get a single for it. So great demands made of the accuracy of Naveenul Haq from the captain by keeping such a packed offside field. But he did seem equal to the task because he strayed on to the middle and leg. And if he bowls the straighter line, Decock will really take heavy toll of him. He couldn't take full advantage of that delivery, so Naveen should consider himself lucky that he got away. To the right-handed Temba Bavuma, he will bowl right arm over the wicket. And they have two slips now. It's the first slip and the third slip. There is no second slip. There's a gap left between the first and the third. Apart from that, there is a gully, a cover point and a mid-off. Naveenul Haq right arm over the wicket, getting the ball to shape away from Bavuma, and some lift as well. Wicketkeeper Ikram collecting it at shoulder height. Temba Bavuma having a good look at that one, letting it go past him. Now he comes down the pitch and taps the point from where the ball took off. So certainly some life in it for the young Afghani quick. Rabada had extracted a lot of life and had Coetzee, and now their Afghan counterparts doing the same. Bowls from close to the stumps, and that's driven by Bavuma, but he can't penetrate the ring on the offside. Very well fielded there by Nurem, and the crowd thought that it was a catch, but it was actually taken on the first bounce. No damage done. The score remains on 6 without loss. And now we really have a fair amount of crowd now. It's not a full house yet, but it's certainly not empty by any stretch of imagination. Certain stands are completely full, some others are well occupied. So that's a very, very good sign for cricket in this country. A fuller led delivery from Naveen, driven on the offside, but fielded this time at mid-off, and there can be no run. Temba Bavuma has been struggling for runs and a lot of pressure on him. He wants to get off the mark quickly, but Afghanistan not giving him any freebies, and therefore making the task even more difficult for him. As I told you, they have a packed offside field, a first slip, a third slip, a gully, a cover point, and a mid-off. And on the onside, a mid-on and a mid-wicket. Here is Naveenul Haq. Gets past the umpire. This time, once again, he drives it square on the offside, but not for runs. Can't penetrate the field. Naveenul Haq right on the money, giving no freebies to Bavuma. Bavuma trying to get away. He knows that once he can get past the infield, he will get full value for money. But Naveenul Haq keeping a tight line and length. Neither bowling it too full, nor bowling it short enough for Bavuma to free his arms. And at the end of the second over, it's 6 without loss, and all the runs coming off the blade of Quinton de Kock. दरअसल एक ये शांत लेकिन दृढ़ शुरुआत है दक्षिण अफ्रीका की जवाबी पारी की। मुजीबुर रहमान ने अपना दूसरा ओवर शुरू किया। क्विंटन डे कॉक ने उसे वापस गेंदबाज की ओर ही खेल दिया। रक्षात्मक स्ट्रोक, रन नहीं बना। मुजीबुर रहमान फिर से, और इस बार गेंद को उछाल दिया। एक बहुत बड़ा छक्का, और लगभग बिना किसी विशेष प्रयास के गेंद उनके जिसे कहते हैं हिटिंग जोन में आई, और 2 कदम आगे बढ़ा के अच्छे फुटवर्क के साथ वो जो आवेग होता है, मोमेंटम होता है, उसके साथ उन्होंने शॉट लगाया और वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। इसके बाद अगली गेंद को उन्होंने टैप कर दिया और स्क्वायर लेग से उसकी फील्डिंग हुई। 1 रन और ले लिया क्विंटन डे कॉक ने, और अब वो पहुंच गए हैं 13 पर। और अब टेम्बा बेवुमा आ गए हैं स्ट्राइक पर। फिर से वो बदलाव करना पड़ेगा फील्ड में, बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जरूरी हो जाता है। जो मुजीबुर रहमान दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और ये एक मौका मिल गया टेम्बा बेवुमा को अपना खाता खोलने का।
उन्होंने सीधा शॉट लगाया बॉलर की बगल से मिड ऑन और उनके बीच से गेंद निकल कर गई, लॉन्ग ऑन पर फील्ड की गई, पर 1 रन आराम से मिल गया टेम्बा बबूमा को और इस तरह से उनका खाता खुल गया। वापस क्विंटन डीकॉक आ गए हैं स्ट्राइक पर, जो बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और इस बार फिर उन्होंने गेंद को बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ खेल दिया। वाइडिश मिड ऑन पर जो फील्डर है उनकी तरफ थोड़ा दूर हैं, तो 1 रन लेने का मौका फिर इनके पास था जो आराम से उन्होंने लिया। डीकॉक 11 गेंदों में 14 पर और टेम्बा बबूमा अभी 6 गेंदों में 1 रन पर, कुल स्कोर 15 रन। मुजीब की इस गेंद को रिवर्स स्वीप जैसा कुछ करना चाहते थे टेम्बा बबूमा और बिल्कुल उलझ गए उसमें, वो गेंद उनके बल्ले में आई नहीं, लेकिन यह है कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ, वो विकेट तक नहीं पहुंची है। तो अब ये ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर में 15 रन, यानी 5 का स्ट्राइक रेट है और इसमें खास तौर से क्योंकि 2 ओवर के बाद 6 रन बने थे और अब 3 ओवर के बाद 15 है, यानी 9 रन इस ओवर में आए हैं और इसमें उस छक्के का बड़ा योगदान है जो क्विंटन डीकॉक ने लगाया। तो क्विंटन डीकॉक को 93 रन चाहिए 2023 साल में अपने 1000 रन पूरे करने के लिए 1 दिवसीय मैचों में। तो और रबाडा अपने 100वें मैच में खेल रहे हैं, ये जिक्र हम पहले कर चुके हैं। नवीन उल हक की ये गेंद जिसको डीकॉक ने खेला और वो गली की ओर गेंद गई, वहां फील्ड की गई, रन लेने की गुंजाइश नहीं थी। फिर से थोड़ा अभ्यास करते हुए डीकॉक कि ये गेंद उन्हें कैसे खेलनी चाहिए थी ताकि ज्यादा प्रभावशाली शॉट लगा पाते। नवीन उल हक इस बीच तैयार हो रहे हैं अपनी गेंद फेंकने के लिए और डीकॉक भी तैयार हैं उसे खेलने के लिए। नवीन उल हक भागकर अपने बॉलिंग पर पहुंचते हुए दाएं हाथ से ये अब राउंड द विकेट आ गए हैं और इस गेंद को डीकॉक ने नहीं खेला क्योंकि ये विकेट के बाहर से निकलकर विकेट कीपर इकराम के दस्तानों में गेंद पहुंच गई। नवीन बहुत उत्साही खिलाड़ी हैं, काफी जोश में आ जाते हैं, इसके कई प्रसंग भी बन चुके हैं। बहरहाल अभी अफगानिस्तान को जरूरत इस बात की है कि पावर प्ले में उसके जो गेंदबाज हैं कम से कम कुछ विकेट निकालने की कोशिश करें। नवीन की ये दोनों गेंदें डॉट बॉल रही हैं और फिर से वो, और इस बार क्विंटन डीकॉक ने उस गेंद को घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, पर वहां फील्डर मौजूद है तो 1 रन ही मिलेगा। 1 रन मिला और इसके साथ ही क्विंटन डीकॉक का स्कोर अब बढ़कर के 14 हो गया है और अब टेम्बा बबूमा स्ट्राइक पर आ गए हैं। फिर से थोड़ी बदलाव की जरूरत, क्योंकि जब दाएं हाथ का और बाएं हाथ का बल्लेबाज होते हैं और 1 रन या 3 रन लिए जाते हैं तो ये जरूरत बन जाती है। नवीन उल हक अब ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और इसको स्टीयर कर दिया धीरे से, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई और बबूमा को 1 रन लेने का आराम से मौका मिला। कुल स्कोर हो गया 17 रन और डीकॉक फिर से स्ट्राइक पर आ गए और फिर से वो अभ्यास करना पड़ रहा है कि खिलाड़ी बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज के हिसाब से फील्डिंग क्षेत्र रक्षण को जमाया जा रहा है। गिरिधरन जो कह रहे थे बहुत सही बात कह रहे थे कि गेंदबाजों के लिए जरूरी है कि वो अपनी फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करें। अगर आपके पास ऑफ के ज्यादा क्षेत्र रक्षक हैं तो आपको अपनी लाइन उस तरह ही रखनी पड़ेगी। नवीन उल हक अब फिर से राउंड द विकेट हैं
और इस बार स्टीयर तो किया था डीकॉक ने, लेकिन उसको गली पर फील्ड कर लिया गया और इसकी प्रशंसा भी की उनके साथी खिलाड़ियों ने। अच्छी फील्डिंग की और अब एक रन भी नहीं मिल सकता था इसमें, तो डीकॉक फिर से अगली गेंद खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर बार वो गेंद जब खेल चुकते हैं उसके बाद थोड़ा सा हटते हैं, हल्का सा टहलते हैं। जब तक गेंदबाज तैयारी करते हैं तब तक वो जैसे अपने मन में तैयारी कर रहे हों, बल्लेबाज भी, कि अब उन्हें क्या करना है, और अच्छी तरह से पूरे क्षेत्र रक्षण को भी ध्यान से देखते हैं कि कहां से उनको अवसर मिल सकता है। उनके लिए राउंड द विकेट आ रहे हैं नवीजुल हक, और ये इस ओवर की आखिरी गेंद होने वाली है। इस गेंद को भी बहुत हल्के हाथों से टैप कर दिया, और लेकिन ये जिस दिशा में गई वहां फील्डर को थोड़ा दूर से दौड़कर आना पड़ा। ऑफ साइड में ही गई थी, लेकिन चूंकि अभी फील्डिंग के प्रतिबंध लागू हैं इसलिए खिलाड़ी बाहर सिर्फ 2 रह सकते हैं, तो दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है। 2 रन दौड़ने का मौका मिल गया और ये ओवर समाप्त हुआ। डीकॉक के अब हो गए हैं 17 रन 16 गेंदों में, बवुमा 8 गेंदों में 2 पर, और कुल स्कोर 19 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Naveenul Haq really impressing in this first lap, and in his first spell he has just given 5 runs from his 2 overs, despite bowling to a man like Quinton de Kock, who is in rampaging form. He is in the form of his life, and he is probably among the most feared batsmen in this tournament. But Naveenul Haq, undaunted, bowling a tight length and line, getting some lift, extracting some pace, and troubling even Quinton de Kock. Bavuma plays the next one quietly, and there can be no run. Mohammad Nabi will be bowling from the far end, running into us. Afghanistan rotating the spinners because Mujib wasn't that effective, and that is why they replaced him with Nabi. And Nabi is a very experienced player. He is another off spinner. Both Mujib and Nabi are off spinners, so there will be an off spinner operating from the far end, giving some air to that one, but Temba Bavuma using his feet and driving it on the onside. They'll get through for a single. It was in the air for a split second, but certainly it wasn't a chance of any kind. 20 without loss. There have been a lot of comments about the slow scoring from Temba Bavuma, but I believe that he's an apt foil for Quinton de Kock, because when you have Quinton de Kock at one end, then you don't need to worry about the scoring rate. What you need to ensure is that Quinton de Kock is free to express himself, and that's why Bavuma is solid at the other end. He may not have got many tall scores, but he ensures that early wickets do not fall. And while doing that, he's probably playing the same role which Cummins played along with Maxwell at the other end the other night. Maybe he has not been appreciated enough. This time Quinton de Kock has a go at that one, gets an edge, and it goes away towards the fine third man fence for 4. The result might be just what Quinton de Kock wanted, but not in the manner that he wanted. He wanted to drive that one over cover. The ball stopped and came. He had played too early, but off the bottom edge, it went past the diving wicketkeeper to the fine third man fence for 4. Those are the kind of shots you play when you are in sublime form. Even when you make mistakes, the roll of dice is in your favor. This time he plays it round the corner, but straight to short square leg, and there can be no run. Quinton de Kock is in the form of his life, both behind the stumps and in front of the stumps. And as long as he's there, South Africa will be breathing very easy.
if Afghanistan have to make a fist of this match, then they really need to get rid of that man as early as possible, because South Africa have a huge array of attacking batsmen. This pair will be followed by Aiden Markram, then there will be Vanderson, then there will be Klaassen, not to talk about David Miller, often referred to as Killer Miller. So they have quite a few batsmen who can tear any attack apart. And if Quinton de Kock continues in this fashion, it might be good night Afghanistan. Naveen ul Haq, right arm over the wicket now. And bowls outside the off stump. Foolish length delivery, getting the ball to move away from Bavuma. But Bavuma right behind the line of that one and place it quietly on the offside. An attacking field for Bavuma. A slip, a gully, a backward point, a cover point, a mid-off on the offside, a mid-on, a short square leg, a deep mid-wicket at the fence, and we have got a backward point at the fence. When South Africa were bowling, we were looking at two fielders on opposite sides of the ground, bang opposite each other. That's almost the same position now for Afghanistan as well, as we watch Naveen ul Haq running away from us from the media end. Short, Bavuma goes for the hook, but gets it off the top edge. It'll sail over the fine leg fence. It'll go for 4, 2 bounces, but it was not a shot in which he was in control. Naveen ul Haq testing Bavuma with the short ball. Bavuma accepting the bait, going for the full shot. The ball hurrying on to him. It went off the splice, but he nevertheless got enough wood of the splice that it flew over short fine leg to the fine leg fence for 4. So everything rolling in favour of South Africa. What more can Naveen ul Haq do to get a wicket? Running again, the big-hearted Naveen. Very skiddy bowler he is, but this time Temba Bavuma eases it into the gap on the onside, and by the time the fielder comes in from a deeper position at short mid-wicket, they are through for a single. 29 without loss now South Africa in the 6th over. Bavuma on 8, Quinton de Kock on 21. Quinton de Kock also played a false shot in the previous over, but still got 4 for it. Bavuma played a false shot, got a 4 for it. And what should Afghanistan do now to get a wicket, if they have such wretched luck in their favour? Naveen ul Haq changing the angle. He will bowl right arm around the wicket to the left hand at de Kock. There's a leg slip. There's a slip in place for de Kock. Here is Naveen ul Haq. And that has been flicked off his toes down to deep backward square leg. And de Kock ambles along for a single. He moves on to 22. In fact, it hasn't looked as if he has been explosive, but he has got this 22 from just 20 balls. That's an indication of how effortlessly the runs are coming for him. What sublime touch he has been in this tournament. I really can't understand why he wants to hang his boots after this tournament. He is in the form of his life, and South African teammates certainly want more of him. We cricket fans want more of him. Probably the opponents don't. But I hope that the South African teammates will convince him to stay on for a little longer. And we cricket fans would love to see him in this form. Maybe as an Indian, I don't want to see him do that against India. Here is Naveen ul Haq, right arm over the wicket, again banging in short, but this one didn't rise at all. It just came to waist height for Bavuma. Bavuma very comfortable, moving inside the line of that one and working it away on the onside. He didn't need to even pull it. It was at best a short arm pull, which went to deep backward square leg for a single. Bavuma also getting into his stride now. Quinton de Kock, of course, is in magnificent touch. He's having a good look at the field. Will he go for Naveen ul Haq on this ball? This will be the last ball of Naveen ul Haq's over. Maybe the spell itself. Will Quinton de Kock just see him off?
or will he go for him this time? Let's see. Well, he has decided to see him off. He thinks that discretion is the better part of Vela. Plays it defensively. End of Naveenul Haq's third over. 3 overs, no maidens, 12 runs and no wicket. Mujib, 2 overs, no maidens, 14 runs and no wicket. Nabi conceded 5 runs of his first over and he too hasn't got a wicket. And after 6 overs, South Africa sauntering at 31 without loss. And if they go on in this fashion, they'll be cruising to an emphatic win. And what Afghanistan need badly is a breakthrough. But whether they'll get one very soon, it is up to Rajiv to tell you. एक तुलना हम अभी देख पा रहे हैं, स्कोरर हमारे बता रहे हैं सुनील कि 6 ओवर के बाद अफगानिस्तान के 25 रन थे बिना नुकसान के और 31 रन है दक्षिण अफ्रीका के। तो 6 रन ये आगे निकल चुके हैं और नुकसान अभी तब उनको भी नहीं हुआ था और इनको भी अभी नहीं हुआ है। और अब टंबा बिबूमा तैयार हैं, मोहम्मद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये एक लगभग थोड़ा सा रन चुराने की कोशिश की गई और डायरेक्ट हिट लगा स्क्वायर लेग से, बल्कि बहुत अच्छा निशाना साधा गया फील्डर द्वारा। तो अब देखना होगा, अंपायर ने रिव्यू मांगा है क्योंकि ये ऐसे क्षण होते हैं जो, और मुझे लगता है कि ये वो पहुंच गए हैं। बिग स्क्रीन पर जो हम देख पा रहे हैं उससे यही आभास मिलता है कि वो पहुंच गए हैं और इस तरह से खतरा जो लगभग बहुत पास आ गया था वो नॉट आउट का निर्णय भी आ गया है तीसरे अंपायर का, कुमार धर्मसेना का। तो लेकिन फिर भी ये है कि ये एक क्षण के लिए तो टंबा बुबूमा और क्विंटन डीकॉक, और क्योंकि क्विंटन डीकॉक इस छोर पे आए थे तो उनके लिए थोड़ा सा ये बड़ा खतरा होता है दक्षिण अफ्रीका के लिए। Quinton de Kock stretched full length and that's why he could get into the crease. That's an indication of his commitment, Rajiv. बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया था और बैट को इस तरह से आगे लेकर वो झुक गए थे पूरी तरह से कि, और उसके बावजूद ही था क्या कि लगभग वो अंदर पहुंचे ही थे। यानी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अच्छी स्थिति में वो थे, बस ये था कि बाल बाल बचे, जो कहावत हिंदी की मशहूर है, वैसा ही मामला था। तो उम्मीद है कि इससे कुछ सबक लेंगे वो, और अफगानिस्तान के लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसी कोई गलती दोबारा दोहराई जाए दक्षिण अफ्रीका की ओर से। इसके बाद एक गेंद फेंकी जा चुकी है और उस पर कोई रन नहीं बना। अभी इस बार भी मोहम्मद नबी की अगली गेंद पर भी क्विंटन डी कॉक ने शांति से उसको एक रक्षात्मक स्ट्रोक खेल दिया अपनी जगह खड़े खड़े, और मिड विकेट से फील्डर ने आकर उसको रोका और अगली गेंद को क्विंटन डी कॉक ने उस पर एक प्रहार तो किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में फील्डर खड़े हैं, उनके पास सीधे गई और इसलिए रन बनाने का मौका नहीं आया। तो अभी तक इस ओवर में पहली गेंद पर 1 रन के बाद, जो कि एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में जिसमें आउट होते होते बचे थे, अभी तक 5 गेंदें जो हैं वो डॉट बॉल रही हैं। तो नबी ने अब तक काम ठीक किया है। आखिरी गेंद पर वो क्या करते हैं, तो आखिरी गेंद पर भी वो 1 रन ही दे रहे हैं। क्विंटन डी कॉक ने हाथ घुमाया, गेंद उनको अपने लेग पर मिली थी तो उन्होंने उसको लेग की तरफ घुमा दिया, लेकिन स्क्वायर लेग पर वो फील्डर मौजूद थे, उन्होंने उसको फील्ड किया और इस तरह से 1 रन के साथ संतोष करना पड़ा। तो 2 ओवर का ये ओवर, 2 रन का ये ओवर, क्षमा करें, 2 रन का ये ओवर हुआ। 7 ओवर के बाद अब 33 रन स्कोर है बिना नुकसान के दक्षिण अफ्रीका का। और एक जिक्र यहां और प्रासंगिक होगा, एक होड़ चलती रहती है सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं। तो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र आगे हो गए थे कल के मैच के बाद, लेकिन अभी फिर क्विंटन डी कॉक
सबसे ऊपर पहुंच गए हैं उस सूची में, और अभी वो खेल रहे हैं तो अभी उनके पास रन और जोड़ने का मौका है। नवीनुल हक अपना स्पेल जारी रखते हुए, और ये एक बेहतरीन छक्का, बहुत ही बढ़िया शॉट, और फिर ऐसा लगा जैसे कोई विशेष प्रयास करना ही नहीं पड़ा क्विंटन डी कॉक को, बल्कि इसको उन्होंने खड़े खड़े खेल दिया। गेंद आई और उन्होंने उसको ऑफ स्टंप पर गेंद थी, पर उन्होंने बाईं तरफ, उसका टाइमिंग इतनी अच्छी थी गेंद की, उनके शॉट की टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि वो गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी, स्क्वायर लेग बाउंड्री के, और उनको छक्का मिल गया। तो नवीन के लिए तो ये अब एक चुनौती है, क्योंकि पहली गेंद पर अगर बाउंड्री हो जाए और वो भी छक्का, तो गेंदबाज के लिए निश्चित रूप से एक ये चुनौती होती है कि आगे के ओवर में वो किस तरह से नियंत्रण करे ताकि ज्यादा तेज स्कोर न भागे। नवीन अब भाग रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस गेंद को क्विंटन डी कॉक ने धीरे से खेला, लेकिन चूंकि फील्डर थोड़ा दूर थे, विकेट कीपर इकराम पीछे से भाग कर आए, तब तक दौड़कर नवीन भी पहुंच गए थे, लेकिन एक रन लेने से अफगानिस्तान के खिलाड़ी नहीं रोक पाए और क्विंटन डी कॉक ने छोर बदल लिया और अब आ गए हैं टंबा बेबूमा नवीनुल हक का सामने करने के लिए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, गिरिधरन बता चुके हैं कि टंबा बेबूमा के लिए एक स्लिप भी है। अगर वो स्लिप क्विंटन डी कॉक के समय रही होती तो शायद वो एक कैच की गुंजाइश बनी थी, जो कि स्लिप न होने की वजह से चौके में बदल गया था। टंबा बेबूमा के लिए स्लिप है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है, और कवर पर क्षेत्र रक्षक हैं, गली है, पॉइंट है। नवीनुल हक टंबा बेबूमा के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं और टंबा बेबूमा ने इसको अच्छा शॉट खेला, हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं था फील्डर से, तो हल्का सा बाईं तरफ अपने भाग करके जो मिड ऑफ के फील्डर हैं उन्होंने उसको रोक लिया और एक रन से आगे स्कोर नहीं बढ़ने दिया। लेकिन ये शॉट जो बेबूमा ने लगाया था, ये काफी कहना चाहिए कि अच्छा सधा हुआ शॉट था, और इससे बल्लेबाज को जब ऐसे शॉट वो लगाता है जो अच्छी टाइमिंग के साथ, तो उसको बहुत आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। फिर से क्विंटन डी कॉक सामने है, नवीन के सामने, और फिर से वो राउंड द विकेट हो रहे हैं। और इस बार क्विंटन डी कॉक ने उसको मिड ऑन की ओर खेला जहां फील्डर मौजूद थे, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने खेला था, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं थी, और बल्कि दिशा उसकी ऐसी नहीं थी कि वो फील्डर को छका पाती, इसलिए फील्डर ने उसको रोक लिया और रन बनाने का मौका इस गेंद पर नहीं आया। इस ओवर की ये पहली बिना रन की गेंद है। अब तक 8 रन हो चुके हैं। क्विंटन डी कॉक, जैसी उनकी आदत है, फिर से मुआयना कर रहे हैं आसपास का, कहां कौन है, कहां मौका है, कहां संभावना है। नवीनुल हक भी थोड़ी सी बातचीत करके मिड ऑन के उनके जो साथी फील्डर हैं उनसे अब गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। और ये गेंद जो थी इसको क्विंटन डी कॉक ने जाने दिया, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। हालांकि वाइड होने का खतरा नहीं था, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने कोई छेड़छाड़ नहीं की उससे, और इसको इकराम विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये दूसरी गेंद लगातार ऐसी आई जिसमें इस ओवर में जिसमें कि रन नहीं बना। और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के 41 थे इस समय, और दक्षिण अफ्रीका के भी 7 ओवर और 5 गेंद के बाद संयोग की बात है 41 रन ही हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद नवीन फेंकेंगे। क्विंटन डी कॉक, फिर इस बीच पे फील्डर जो है वो स्थान उनका थोड़ा बदला गया है।
जो गली के फील्डर हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ गए हैं और एक शॉर्ट कवर, और ये शॉट जो खेला उन्होंने वो फिर मिड ऑन की दिशा में आया और मिड ऑन के खिलाड़ी ने अपनी दाईं तरफ झपट कर उसे रोक लिया और रन बनाने का मौका नहीं मिला। तो 8 ओवरों की समाप्ति के बाद बिना नुकसान के दक्षिण अफ्रीका के 41 रन। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. South Africa remorselessly moving towards a win now. Afghanistan will have to really conjure some magic out of the hat, and if they can't pull a rabbit out of the hat, I think it will be South Africa all the way. Nabi to continue proceedings from the pavilion, running into us, and Temba Bavuma now stroking the ball more fluently than before, drives it towards mid-on and takes a single. Temba Bavuma is now getting the ball from the middle of the bat. He is middling it, he is stroking it more fluently. He is not getting the gaps in the same fashion as the informed De Kock is getting, but he is playing his role to a nicety. He is offering solidity at one end and giving the license for De Kock to express himself at the other. And this combination has worked wonders for South Africa in this tournament. And South Africa, of course, have a winning percentage of 88% and Afghanistan 12% in the matches played between them. It's been stroked away towards mid-off and they have taken a single. 43 without loss. Here is Mohammad Nabi holding his off spinners, and this time Bavuma chancing his arm, sweeping it, but that's well and truly beyond the reach of Noor Ahmed, and it goes over to the fine leg fence. 2 bounces for a 4, but on this occasion I would say that even though it was in the air, Bavuma was completely in control of the shot. Now Bavuma is also having the confidence to go for the slog sweep. Nabi under some pressure now. This time flights that one, gets a good drift, and Bavuma using his feet, initially wanting to drive him through extra cover, checking his shot at the last moment and playing it quietly towards short mid-off, and there can be no run. Again. Right arm over the wicket, wide of the crease, well flighted delivery, but Bavuma now using his feet very well, giving a good exhibition of his nimble footwork and driving it all along the ground towards mid-on and gets a single. He now moves on to 17 and South Africa are 48 without loss in the 9th over. South Africa cruising now. Bavuma also beginning to regain some of his lost touch, and if that boundary was an indication, it means that he's regaining some confidence as well. Quinton de Kock works that one against the tide on the onside, and the two of them run through for a well understood single. That's the end of the over, and 49 without loss at the end of the 9th over. De Kock 32, Bavuma 17. But what we saw there on that occasion... क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। Both these batsmen have tremendous understanding amongst themselves. They ran through for a quick single, even though the ball went straight to the fielder, and they weren't even stretched while doing that. And I'll tell you, there's one other good spectacle in this stadium. We have a scoreboard right in front of us. It's not a conventional or a full-fledged scoreboard which will tell you everything, but it tells us the current score and the two batsmen playing there. So I can see it right bang in front of me, very attractively lighted. Many things in this stadium are among the best in the world, and I think this one will also rank right up there.
And there might be a bowling change at the other end. And we await to see the decision now. Who will be the one to take proceedings from the end? And Azmatullah Omarzai, he will be the one to bowl then from the media, and he will be running away from us. He had a great time with the bat earlier in the afternoon. He was unbeaten in 97, and I can tell you even the South Africans were a bit unhappy to see him not reach the coveted 3-figure mark. Now let's see if he can have some magic touch with the ball. Bowls right arm around the wicket this time to Quinton de Kock. A yokel and delivery. Quinton de Kock digs that one away, and there can be no run. Azmatullah Omarzai had a great time with the bat. Unbeaten on 97. He held the Afghanistan innings together. They were rocked early on. They were in tatters at 45 for 3. But he took them to a fighting 244. He bowled short, and de Kock has pulled that one with impunity into that gap. It seemed as if it would go for 4, but what a brilliant piece of fielding there at the boundary. And that prevents the ball from going for anything more than would have been 4 for all money. But a splendid diving stop by Noor. No, that was Rashid Khan. And Rashid Khan made a splendid diving stop there at the square-leg fence. What a committed cricketer he is. He's probably among the best leg spinners in the world today. He is a pretty handy man with the bat lower down the order. He has had a few cameos in this tournament, and he is fully committed on the field. He just rung himself onto his right, got a hand, and prevented the ball from crossing over to the fence. Azmatullah again, and this time Babuma plays it quietly on the offside, and there can be no run. The South African 50 came off 56 balls. In contrast, Afghanistan had laboured, and they got to their 50 of 78 balls. South Africa, of course, without losing any wickets. Afghanistan had lost 3 around the same time. So South Africa well ahead on all counts. Azmatullah again, right arm over the wicket. That's a fuller length delivery, and that's been driven by Temba Bavuma, taking it on the full and driving, but he couldn't get it into the gap, and that's why he has to content himself with a single, fielder that deep mid-wicket. So far, Bavuma can be happy that he is middling the shots. He is playing it fluently, but he is not able to pierce the field the way Quinton de Kock has been doing. And that's why runs have been flowing so easily for Quinton de Kock. And Temba Bavuma has had to really work very hard for the runs, but he doesn't mind doing that. At the moment, he's on 18 from 23 balls, so it's not all that slow either. 51 without loss. Around the wicket to the left-hander, and he has hoisted him over long off. And I think that's going to be a maximum. Yes, the umpire has signaled is a 6. And de Kock simply whizzing into Azmatullah, taking it on the full and spooning it over long off. In fact, there was no long off, there was a man only at mid-off, so the shot was always on. And once it sailed over the man at mid-off, the only point of interest was, would it be a 4 or a 6? But the form that de Kock is in, he's not going to bounce inside the fence anytime. It went straight into the fence for a huge 6. De Kock drives but can't get it from the middle of the bat and has to be content without getting any run. 57 without loss at the end of the 10th over, and really South Africa now blazing away, and Afghanistan has to do something really magical if they have to make a fist out of this match. पावर प्ले ख़त्म हो गया है पहला, और इन 10 ओवरों में अफगानिस्तान जहां 41 रन था 2 विकेट पर, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 57 रन बना लिए हैं बिना नुकसान के। और पावर प्ले की एक पावर हमने देखी जो आखिरी से पहले वाली गेंद थी अज़मतुल्लाह की, जिसको छक्के के साथ
लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेज दिया क्विंटन डीकॉक ने। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहां 41 पर बिना नुकसान के दोनों टीमें बराबर थीं कुछ ही देर पहले, उसके बाद 50 तक पहुंचने में अफगानिस्तान को बहुत लंबा समय लगा था, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो है वो जिसे कहते हैं तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया है। इसकी वजह वो विकेट गिरना था। 41 पर पहला विकेट गिरा था अफगानिस्तान का, फिर दूसरा भी गिरा था। तो ये जो विकेट गिरे थे अफगानिस्तान के उस समय, एक के बाद एक विकेट गिरे, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी रन बनाने की रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। मुजीबुर रहमान लौट आए हैं गेंदबाजी में, और उन्होंने जो गेंद की उसे टेम्बा बुबोमा ने फेंका, खेला उसे ऑफ साइड की ओर। एक रन बनाता है। अगली गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने अच्छा शॉट लगाया है, लेकिन एक रन के लिए ये भी रहेगा। ये मिडऑन की दिशा में उन्होंने खेला था। ये एक दिक्कत होती है क्षेत्र रक्षण पकड़ने वाली टीम को जब बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं, क्योंकि गेंदबाज को भी दिक्कत होती है उसे बार बार अपनी, और इस बीच फिर से ये स्थिति आई है कि गेंद जो है वो विकेट कीपर को भी छकाती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई पीछे। तो एक 4 रन सौभाग्यशाली फिर मिल गए। इस बार ये भाग्य था बबूमा का, जिनका अंदरूनी किनारा लगा। ऐसा मौका अफगानिस्तान की पारी में भी आया था और 4 रन मिले। इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे पर संपर्क नहीं हुआ गेंद का बल्ले से, और क्विंटन डीकॉक ने गेंद को, क्षमा करें, इकराम ने एक गेंद को फील्ड कर लिया। क्विंटन डीकॉक इस समय इस तरह छाए हुए हैं कि जैसे उनका नाम लौट कर वापस आ जाता है विकेट कीपर के रूप में भी जबकि इस समय वो बल्लेबाज के रूप में अपना रंग दिखा रहे हैं। महबूबा ने बहुत जोर से शॉट लगाने की कोशिश की थी मुजीब की इस गेंद पर, हालांकि उसे अब वाइड करार दिया गया है। ऑफ स्टंप के बाहर थी और महबूबा पीछे पीछे गए उसके, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब दोबारा फिर से ये मौका आया और इस बार उन्होंने शॉट तो लगा दिया, लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उन्हें कैच कर लिए गए हैं और मुजीब ने पहली सफलता दिला दी है टेम्बा बुबूमा, जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा फॉर्म उनका नहीं आया है। अभी वो कुछ अच्छे फॉर्म में आते हुए दिख रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने शॉट लगाया जो सीधा फील्डर के पास गया और गुरबाज ने कैच किया। 28 गेंदों पर 23 रन बनाकर बबूमा की पारी समापन की ओर पहुंची और इस तरह से पहला विकेट का गिर गया है। हालांकि ज्यादा खुश हुए होते अफगानिस्तान के खिलाड़ी अगर ये विकेट क्विंटन डीकॉक का होता, क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा वो बने हुए हैं। फिर भी यह है कि विकेट गिरना एक शुरुआत तो होती ही है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। और अब आ रहे हैं रासी वन डर डुसेन, जिन्होंने भी अच्छा फॉर्म दिखाया है इस विश्व कप में। वो भी काफी विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और अभी उनकी और क्विंटन डीकॉक की मंत्रणा चल रही है। जब भी ऐसा मौका आता है कि विकेट गिरता है या कोई ऐसा बीच में अंतराल आता है तो थोड़ा सा कुछ शीतल पेय वगैरह आते हैं जिससे कि खिलाड़ी अपने को ताज़ा कर लें, पानी पी लें। अब वो लोग बाहर जा रहे हैं और खेल फिर से शुरू होने को है, क्योंकि वो उस ओवर की आखिरी गेंद थी मुजीब के
तो अब मोहम्मद नबी जो हैं वो अपना अगला ओवर लेकर आ रहे हैं और डीकॉक उनका सामना करेंगे। मोहम्मद नबी हमसे दूर वाला जो छोर है, या जिसे हम पेविलियन छोर कह सकते हैं, वहां से, क्षमा करें, बल्कि हमारी ओर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पेविलियन छोर की ओर गेंद फेंकेंगे मोहम्मद नबी, हमसे दूर जाते हुए दाएं हाथ से, और वो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। हमने देखा कि एक कोशिश की है अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कि क्विंटन डीकॉक को कई लोगों ने राउंड द विकेट गेंद फेंकी है, कोशिश की है कि उनके लिए कोण ऐसा बनाया जाए कि उनको जगह न मिले। पहली गेंद पर रन नहीं बना, दूसरी गेंद पर डीकॉक ने धीरे से घुमा दिया उसे। उनको लगा पहले कि गेंद थोड़ा दूर गई है फील्डर से और रन लेने का मौका है, लेकिन फिर ऐसा उन्होंने किया नहीं, क्योंकि क्षेत्र रक्षक झपट कर गेंद तक पहुंच गए थे और खतरा लेने का कोई कारण नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के रन रेट अच्छा चल रहा है। इस बार बहुत अच्छी गेंद मोहम्मद नबी की, इसने छक्का ही दिया लगभग क्विंटन डीकॉक जैसे जमे हुए बल्लेबाज को, और उनके पास से गेंद निकल करके विकेट कीपर इकराम के पास पहुंची। यानी उनका बाहरी किनारा लग सकता था, लेकिन बच गए वो। और इस अगली गेंद को उन्होंने शॉट के रूप में खेला, तेज स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के पास। चूंकि तेज स्ट्रोक, इसलिए रन लेने का मौका नहीं, फील्डर के पास फौरन पहुंच गई। ये आप कह सकते हैं स्क्वायरिश मिड ऑफ, वाइडिश मिड ऑफ पर फील्डर है, और इस बार तो उन्होंने रक्षात्मक स्ट्रोक खेला है, गेंदबाज के पास लौट कर वापस आई है। तो नबी ने अभी तक 5 डॉट गेंदें फेंक दी हैं इस ओवर में। क्या अंत कैसा होगा? अंत ऐसा ही होगा। ये मिडिल ओवर हुआ, और ये एक विकेट गिरने के ठीक बाद मिडन ओवर का होना एक अच्छा लक्षण है अफगानिस्तान के लिए कि उनका संघर्ष कुछ न कुछ रंग ला रहा है। Wicket followed by a maiden over, adding to the pressure on South Africa. And in fact, we found a strange display of impatience from the normally composed Temba Bavuma. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। Mujib with his tails up. He has tasted success, he has tasted blood, and he'll be a totally different bowler now. He bowls to De Kock, well-flighted delivery. De Kock using his feet, but just about tapping it towards short mid-wicket, and they can't think in terms of getting a run now. Mujib again. This time slightly short, De Kock draws back and cuts, but he can't pierce the field on the offside, but nonetheless has got enough time to run through for a single. So De Kock moves on to 41 with that, and South Africa to 6 for 1. Mujib giving them the breakthrough that they wanted, and Temba Bavuma very impatient and holing out to the cow corner man at the boundary. In fact, strange displays impatience, as I was telling you. Inner edge just scraped past the leg stump. After that, he tried a reverse sweep, and then he played this injudicious pull shot straight into the hands of the fielder at the mid-wicket. Mujib bowling a flatter trajectory this time, and Rasif van der Dussen also in good nick in this tournament, digging that out, but not for runs, plays it quietly on the onside.
Mujib this time from wide of the crease. Again the faster delivery. And Rasif van der Dusen trying to flick that one off his toes. Wrapped on the pad. No damage done. No runs possible. And that is the end of another tidy over from Mujib. South Africa now 66 for 1 after 13 overs. And Mujib's analysis look much better now. 4 overs, no maidens, 23 runs and 1 wicket. So, what Afghanistan need is, they've got 1 wicket, they need a couple more. Nabi continuing from the other end, and this time de Kock attempts a reverse sweep, and the Afghan players think that they have got their man, and they have gone upstairs. It is a very important wicket of de Kock, and that is why they have decided to risk the review. And it was also a kind of a reckless shot from de Kock. He was going on so well, and South Africa is well ahead of the asking rate, so there was no real need to play that kind of a shot at this point. But ever since Babuma went into the hut, we have been seeing de Kock playing a little strangely. First there was a maiden bowled by Nabi in the earlier over, and maybe that set him back. So that's why he tried playing that reverse sweep of a ball that straightened, and it's there out there in the big screen. It's a legitimate ball, all right, and we are now focusing on the business end of the telecast, and the Afghan players seem to be very confident. They are joyous, they are jubilant. De Kock having a wry smile on his face as he watches the replay on the big screen. De Kock in fact discussing it with Rashid Khan, and it's nice to see this kind of a banter among the players from opposing sides, even when they are awaiting the decision of the third umpire. The third umpire taking his time, he's having a very good look at that, and it certainly does look as if de Kock did not get any edge, and it's pat first. Ultra Edge is likely to confirm that. Yes, Ultra Edge confirms that de Kock did not get any edge, and it went straight onto the pad. And now we are going to see the ball tracking, and the ball tracking will then tell us the final thing. The impact is in line, that's fine. It's pitched outside off, that's also fine. And it's hitting the stumps, which means it is 3 reds. And de Kock will have to take the long walk back to the pavilion. De Kock dismissed, adjust, leg before wicket, off the bowling of Nabi for a well-made 41. But suddenly he had got into his shell. He was in sublime form earlier on, but once Babuma left, he lost that sublime touch, played a couple of injudicious shots, and has paid the penalty. He departs, and there can be no better sight for the Afghan fans than to see the back of Quinton de Kock. And let me tell you, don't go anywhere. This match is alive. South Africa, just some time back, were crew without loss, and now they are 66 for 2. And this will be the right time for Rashid Khan to come and play havoc with the middle order if he can. We saw that Keshav Maharaj was getting some purchase from the wicket, and certainly Rashid Khan will be smacking his lips now. And with 2 new batsmen at the crease, this probably is the opportune moment for him. It's now or never for them. And even though Afghanistan can't progress further in the tournament, they will be very happy to round it off with a win against a much higher rated opponent. Aiden Markram out there in the middle. He's a good player of spin. Awaits that ball on the back foot, waiting for the ball to turn, and then just digs it out towards short mid-wicket, and there can be no run. Both the South African openers back in the hut in quick succession. In fact, this is the same thing which happened with Afghanistan also.
Afghanistan was 41 without loss, and then suddenly they lost both their openers, and that's the same thing that has happened with South Africa. Again played very quietly, and there can be no run. Markram yet to open his account, and Van der Dusen on one from full balls. Nabi this time again, and that's been played away on the onside. They'll be content with no. They're coming back for the second, and I think they will manage it. Yes, good running between the wickets. Markram opens his account with that brace. The South African batsmen usually run very well and very quickly between the wickets. Most of them have been batting together for a long time, so they have very good understanding amongst themselves. Right arm over the wicket from close to the stumps. And Markram giving it full respect, playing it quietly on the onside, and there can be no run. Nabi plying his off-spinning trade now. A trifle short, he dragged that one short, and that's why Markram had enough time to get onto the back foot and punch it through the gap on the offside. They get a single, and that takes South Africa to 69 for 2 at the end of the 14th over. 2 wickets falling in quick succession, and certainly we have a match on our hands, and everyone here must be hoping for the fall of another quick wicket, which can then bring Afghanistan probably on par with South Africa in this match. 41 और 23 ये स्कोर रहा दोनों सलामी बल्लेबाजों का, डिकॉक और बबूमा का। 69 पर 2 हैं अभी दक्षिण अफ्रीका 14 ओवर के बाद, और अब तक केवल एक अतिरिक्त रन दिया है अफगानिस्तान ने, तो ये एक अच्छी बात है। मुजीब अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए इस गेंद को मरकरम ने उनके और मिडॉन के बीच से खेल दिया, और लॉन्ग ऑन से दौड़कर खिलाड़ी आए। 1 रन लेने का पूरा मौका मरकरम के पास, छोर बदल लिया उन्होंने, और अब वॉन डेर डसन सामना करेंगे मुजीब का। मुजीब दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इसको घुमा दिया है बहुत खूबसूरती के साथ वॉन डेर डसन ने, और ये 4 रन। बहुत ही बारीक नाजुक सा शॉट उन्होंने खेला, सिर्फ उन्होंने दिशा दे दी गेंद को, और इस तरह से एक चौका कमा लिया। ये एक रिवर्स स्वीप किया उन्होंने, रिवर्स स्वीप की कोशिश में ही डिकॉक आउट हुए थे, लेकिन वॉन डेर डसन ने इस पे 4 रन प्राप्त किए। अगला जो उनका शॉट है वो रक्षात्मक रहा, और वो कवर भी खेला उन्होंने, वहां पर फील्डिंग। अगला शॉट भी उनका एक तरह से पिछले शॉट की कारवन कॉपी, बल्कि इस बार और आगे आकर फील्डर ने गेंद को उठाया। अभी ये दोनों डॉट बॉल रही एक के बाद एक। अब इस बार तो मुजीब की इस अगली गेंद को वॉन डेर डसन ने बिल्कुल इतने धीरे से खेला कि लगभग फील्डर को चल करके पिच तक आना पड़ा, और मुजीब इस ओवर की अपनी आखिरी गेंद फेंकने जा रहे हैं। पर इस बार शॉट मारा है स्क्वायर लेग की दिशा में वॉन डेर डसन ने, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, इसलिए 1 रन से अधिक नहीं हो सकेगा। तो 6 रन इस ओवर में गए हैं, और 15 ओवर के बाद अब 75 पर 2। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। ये खेल आगे बढ़ता हुआ, दक्षिण अफ्रीका का जवाब अभी जारी है। हालांकि अभी 2 झटके उन्होंने एक के बाद एक खाए हैं। पहले अपने कप्तान को खोया, जिन्होंने एक तरह का एक ऐसा पूल करने की कोशिश की जिसके लिए पर्याप्त उछाल नहीं था, और वो गेंद कुछ तेज भी थी। बाकी जो गेंदें उस ओवर में फेंकी थी मुजीब ने, उससे वो तेज गेंद थी, और फिर उसके बाद मोहम्मद नबी को सफलता मिली
जब उनको रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में चूके क्विंटन डीकॉक सबसे ज्यादा इनफॉर्म खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के, और वो पग बाधा यानी एलबीडब्ल्यू आउट होकर के वापस गए। पहले अंपायर ने नहीं दिया क्रिस्टोफर ब्राउन ने, लेकिन डीआरएस लिया गया और उसमें उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा। बहरहाल अब 1 रन वॉन्डरसन ने मार्करम खेल रहे थे अभी, तो मार्करम ने मिड विकेट की ओर खेल दिया। मिड विकेट पर खिलाड़ी ने फील्ड किया, भी एक तरह से अपनी पारी को जमा रहे हैं, वो रक्षात्मक कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल 16 ओवर पूरे हो चुके हैं। रशीद ने अपने पहले ओवर में 2 रन दिए, अच्छा ओवर माना जाएगा, और 77 पर 2 दक्षिण अफ्रीका 16 ओवर के बाद। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Rashid Khan, the trump card now in action. He's bowled the first over in which he was already into his stride. He was on the radar, he was on the money, he was getting the ball to turn. He has already figured out the right pace to bowl. He has figured out the right area to bowl. He has got the wrong undoing, and we have got 9 very enthralling overs to watch of Rashid Khan. Mujib continuing now to Markram, and he gets some bounce on that one. That one got big on Markram, and Markram completely beaten by that one. Following it, lucky that he didn't get an edge. And now Afghanistan, sensing the discomfort of Markram, have a slip in place for him. But this time that one just straightened, and Markram off the back foot playing it quietly on the offside, and Rashid Khan at short cover doing the fielding. A slip, a short third man, and a short cover on the offside. Markram using his feet on drives at a brilliant stop on his follow through by Mujib. Otherwise it certainly looked to be going behind the bowler, and he would have got a single for it, but a good time stop of his own bowling. This time Markram drives and drives on the offside, but then it was not a catch, it was a bum ball. Many in the crowd thought that it was a catch, and they started clapping. And Rashid Khan, a popular man here, playing to the galleries by remonstrating as if he had taken a catch, but no damage done so far. Markram digs the next one out, and there can be no run. So suddenly now there is some hush around the ground, because people sense that we have a contest in our hands. Markram this time uses his feet, wades into that one, and has deposited that one over long on into the stands. It's a colossal 6. That's Markram in full flow. That's the touch of class. Markram is a very classy player. You can't keep him quiet for long. 5 dot balls were bowled, but off the 6th ball, he ruined the good over of Mujib. And Mujib, who thought that he is about to end a very good over,